पल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजाः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्महे गगन अम्बुमरुर्दिजश्च कालस्ततात्ममनसेति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽथ पापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्माण्डिकेटपतगावहदश्च जीवाः यद्दत्तमात्र विभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Hare Krishna and welcome to all the devotees, all the participants in today's program. Can I be heard? Can someone confirm if my voice is audible? Yes, Hare Krishna Prabhuji. Okay. Hare Krishna. Thank you. Okay, very happy to. Oh, someone says it's breaking. Is it still breaking? The voice is breaking, or Yash? How do you hear this? This is not the mic. Can you put someone? Sadananda, can you bring another mic? Prabhuji, voice is absolutely fine. Okay, good. So आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, and because you are so sincere, it also gives me inspiration to come and discuss with you. Otherwise, this material world always keeps us so busy, but we find time together. This is the power of Sankirtan. Another one. Okay, just 1 second. Problem with this. I think this is another one. Hare Krishna. Sorry, the mic is creating some problem. Let's try to do without mic unless we get the right one. Okay, so thank you. I was saying that the power of association, the power of devotees company, भक्तों का जो association है, उसका जो power है, it is so very great that we feel inspired to talk about Krishna Katha. Otherwise, we are so busy. You know, I'm sure all of you are also very busy in different activities. But when we come together, we have this great opportunity to discuss Krishna Katha. So before starting Kirtan, I would humbly request everyone to please put your videos on if it is possible, unless you are in a difficult situation, which is fine. I would request devotees to share something from the previous sessions. आज chapter 2 को हम लोग conclude करने का प्रयास करेंगे कृष्णा बिलिंग, and can I request some of you to discuss, say some points from the last class, if you are there. Who wants to go? Who wants to share? एक हफ्ते के बाद हम लोग भूल जाते हैं. I think class should be every evening, is it not? Someone was suggesting कि रोज. Ramesh Chandra Prabhu, what do you say? Should we have class? No, you're on mute. डेली हो तो, लेकिन टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है.
And daily short class may be better, is it? So short is better. Daily half an hour. Half an hour, yes, sir. What do you think? Yes, yes, sir. Definitely. Good idea. Good idea. Okay. Maybe let's take some opinion of others meanwhile. But anyone wants to share? Ramesh Prabhu, you want to share something from previous class? सर मैं थोड़ा बिजी था तो वीक में तो पढ़ाया नहीं आपने. Okay. Let's hear from Anil Prabhu. No problem. Anil Prabhu. Yes, Anil Prabhu. Can you say in one line? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Dhanvat Pranam. Yes, Prabhu. थोड़ा गला खराब हो रहा है प्रभु जी, इसलिए। No problem. वर्क नंबर 41 से 46 तक हमने डिस्कस किया था। 41 में व्यवसाय का बुद्धि बारे में बताया था, और उसमें ये डिस्कस हुआ था कि गुरु की तुष्टि से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। Okay. गुरु से हमें नित्य दिन में 3 बार उनको प्रणाम करके उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। गुरु में हमारी संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और जो अल्पज्ञानी मनुष्य है, उनका जो ध्यान है वो वेदों में वर्णित जो कर्म कांड बताए गए हैं, जो अनुष्ठान बताए गए हैं, उनमें ही लगे रहते हैं कि उनको बस स्वर्ग की प्राप्ति होनी है। ये उनके लिए काफी, यहीं तक उनकी पहुंच रहती है। ओके, थैंक यू अनिल को, आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए। एंड देन लेट्स हियर फ्रॉम अंजलि माता जी, शी हैज रेज्ड द हैंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस यू वांट टू रिपीट? या प्रभु जी, आप बताए थे अगली क्लास में कि हम लोग को गुरु को शरणागत रहना चाहिए। गुरु ही हम लोग को कृष्ण के बारे में बताते हैं और मार्ग दिखाते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, और कोई ऐसा गुरु नहीं जो आध्यात्मिक में हो, वही गुरु से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। और इसमें ऐसे गुरु का क्या क्वालिफिकेशन है? क्या हमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा गुरु सही है, कौन सा गुरु सही नहीं है? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे गुरु हैं। नहीं भगवान, अगर आप गूगल में सर्च करोगे, गूगल में कि मुझे एक अच्छा गुरु चाहिए, खूब सारे नाम मिलेंगे आपको। नहीं प्रभु जी, हमको मतलब जो हमारे को गुरु मतलब जो कृष्ण के बारे में बता, वही हमारा सच्चे गुरु है। क्योंकि जो कृष्ण के बाद जो अपने से मिलावट ना करे, वो जो वेदों से आ रहा ज्ञान को ही हमको बताए, वही गुरु है। यस, तो गुरु का कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। कोई भी व्यक्ति, इवन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में ही बता रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वो गुरु हो गए। गुरु का विशेष क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले, जैसे आपने बताया कि गुरु एक प्रामाणिक परंपरा से होना चाहिए। He should be connected to a bona fide chain, disciplic succession जिसको बोलते हैं। एक भगवान से शुरू होकर प्रामाणिक गुरुओं की जो चेन है, गुरु शिष्य परंपरा, उसमें वो गुरु जो है अच्छे से कनेक्टेड होने चाहिए, स्थित होने चाहिए, उस परंपरा का भाग होने चाहिए। पहला तो ये। और फिर दूसरा, कोई भी ऐसे गुरु जो प्रामाणिक परंपरा से कनेक्टेड है, वो क्या प्रयास करेंगे? भगवान के संदेश को यथारूप हमें देने का। वो भगवान के संदेश को चेंज नहीं करेंगे, उसमें अपनी मिलावट नहीं करेंगे कि लोगों को खुश करने के लिए हम कुछ अपने से मिलावट कर देते हैं। ऐसा नहीं। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो वहां के जो कई आध्यात्मिक जो संगठन के लोग उनसे मिले, और उन्होंने बोला कि स्वामी जी, आप अमेरिका में अभी नए आए हो, आपको अमेरिका का चाल चलन पता नहीं है। अगर आप ऐसे यहाँ धोती पहन के घूमोगे और हाथ से खाओगे और ये है ना कठिन नियमों की बात करोगे, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आप हमारी तरह पैंट शर्ट डालो और उससे फॉक्स है, उससे छुरा, उससे खाइए, और इनकी तरह पार्टीज में जाके इनसे मिलिए, तब ये लोग भक्त बनेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं एज इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस की नॉलेज को देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जो कि परंपरा की नॉलेज है। मुझे उस नॉलेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक भी व्यक्ति उसको फॉलो करेगा, आई एम हैप्पी, लाइक दैट। सो गुरु जो है वो परंपरा की नॉलेज हमें देते हैं। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू
Anjali Mataji, for bringing these points. Any other last point from previous discussion? ये बहुत important है, जो previous discussion हमें याद नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ने में उतना interest नहीं आएगा. Yes, Vaibhav Prabhu wants to say something. Vaibhav, you want to say something? नहीं प्रभु जी. Okay, okay. आपका mic. प्रभु जी पंद्रह प्रणाम. Yes, Divya Mataji, you want to say something? We don't see you. प्रभु जी actually last okay प्रभु जी wait a minute. Yeah, now we see you. Prabhu ji, actually last time na all the points are discussed whatever I'm thinking, and the last time na actually I was disconnected because my network was finished. Okay. That's right. And Prabhu ji, I want to tell you that I'm not giving you the number of the principal because I don't know whenever you are free. So can you tell me that when you are free? It's a big question. So, but you can send me the number and maybe we can talk on Monday if you are free. Monday around 5 p.m. Coming Monday. Okay, Prabhu ji. Okay, thank you. Then we start with Kirtan. Thank you for all those who contributed to the discussions. ये बहुत important है. क्लास जो है ना, क्लास का मतलब ये डिस्कशन है एक्चुअली. यहाँ पे ऐसे नहीं कि बस चल रहा है, सुन रहे हैं हम लोग, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो रियली फिर हमें फुलफिलिंग होगा. वी विल पार्टिसिपेट एंड वी शुड नॉट शाई कि मेरा पॉइंट कितना सही है कितना गलत है, कोई खराब ना मान जाए. वी आर ऑल न्यू, वी आर ऑल लर्निंग, so there is no problem. Yes, Anubhav Prabhu wants to say something before we do the kirtan. Yes, Anubhav Prabhu, over to you. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु एक लास्ट क्लास से ना एक वर्स था 50th वर्स है. हाँ. उसमें प्रभु ये बताया गया कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है. अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है. तो यहाँ पे भगवान जो ये कह रहे हैं कि योग के लिए प्रयत्न करो, ये यहाँ पे योग से क्या मतलब है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए? So definitely योगा मीन्स कनेक्शन. योग का शब्द का मतलब है भगवान से कनेक्शन. जैसे दो चीजों को आप जोड़ते हैं उसको योग बोलते हैं. तो योगा का मतलब है कनेक्शन. योगा का मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं. अब कई सारे लोग अलग अलग लेवल से भगवान को कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना. कोई ध्यान योग, कोई अष्टांग योग. लेकिन और भगवान अर्जुन को स्टार्टिंग में एक बार सारे ऑप्शंस दे रहे हैं अलग. अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो. इस तरह से भगवान और अर्जुन के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है. लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे भगवत गीता के हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे, इवन बीच में भी भगवत गीता के भगवान उसको क्लियर करेंगे कि द टॉप मोस्ट योगा इज भक्ति योगा, which is loving devotional service unto the supreme personality of Godhead. भगवान की प्रेममयी सेवा, वो जो योग है भक्ति योग. जिस भी चीज के माध्यम से हम भगवान को अप्रोच कर रहे हैं वो एक योगा है. तो जो भक्ति के माध्यम से अप्रोच करते हैं that is भक्ति योगा, which is the highest. Because why it is highest? Because it is based on love. और love जो है, जो प्रेम है, प्रेम का मतलब क्या है? मैटेरियल वर्ल्ड में प्रेम का मतलब है कि मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए हर चीज मैं सेंटर होना चाहता हूँ. मैटेरियल वर्ड मतलब आई फील हैप्पी. जैसे एक लड़का एक लड़की को बोलता है आई लव यू, तो ही फील्स हैप्पी इन हर प्रेजेंस. बट जो एक्चुअल लव का मतलब है दैट इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू अदर्स प्लेजर. यानी कि दूसरे व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हो उसके प्लेजर के हिसाब से एक्ट करना. सो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भक्ति योगा का प्रोसेस है, वो ये सिखाता है कि भगवान के प्लेजर के लिए कैसे एक्ट करना है. जैसे अर्जुन ने युद्ध किया लेकिन भगवान के प्लेजर के लिए, इसलिए उनका जो युद्ध है वो भक्ति योगा है. ऐसे तो डेफिनेटली लव इज हाईएस्ट एंड ऑल अदर थिंग्स आर इंटरमीडिएट. यू नो, कोई प्रोसेस हमें भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ा सकता है, भगवान की तरफ थोड़ा आगे कर सकता है, लेकिन भगवान का अल्टीमेट कनेक्शन और शेल्टर देने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज द प्रोसेस ऑफ Bhakti Yoga. Okay, Prabhu, does that answers your question? Yes, Prabhuji. Clear. Okay, thank you. So then we will quickly sing Jai Radha Madhav, and then we will try to move little ahead, taking all of your blessings.
we will try to complete chapter 2 today. We'll sing this bhajan. I hope आपको मेरा screen दिख रहा होगा. It's just a very small bhajan but very deep meaning. So let us try to. So you all please try to repeat. You all please try to sing and participate. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Yashodanandana Jaya Bhagavanarandana Jaya Jaya Yashodanandana Jaya Bhagavanarandana Jaya Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunda Vihari Jaya Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunda Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya
प्रभु नित्यानंद अद्वैता Everyone try to stand here. हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील ठाकुर भक्ति विनोद की, श्रील प्रभुपाद की। Krishna is the lover of Radha. He displays many amorous pastimes in the groves of Vrindavan. He is the lover of the cowherd maidens of Vraja and the holder of the great hill named Govardhana. He is the beloved son of Mother Yashoda, the delighter of the inhabitants of Braja, and he wanders in the forest along with the banks of river Jamuna. So this is a beautiful bhajan sung by Thakur Bhakti Vinod, and ये जो भजन आप गा के, you can just remember Vrindavan because it has everything in just 2 lines. इस भजन में 2 lines में ही पूरा वृंदावन को आप स्मरण कर सकते हैं. It talks about Yashoda Maiya, it talks about gopis, it talks about Srimati Radharani, it talks about the inhabitants of Vrindavan, Braja Jana Ranjana, it talks about Mother Jamuna. So it gives a very good, if you just remember about this different, as we are singing, आप जब in different great personalities के बारे में सुनेंगे या सोचेंगे, you will be able to, you can transport yourself to Vrindavan even though you are sitting in Bengal or Noida or wherever. हम सीधा वृंदावन में अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं.
So thank you, and we will now begin with the invocation prayers. भगवत गीता के स्टार्टिंग में आप सब लोग ओपन कर सकते हैं invocation prayers. इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, राइट? आई होप आप सबको पता है अच्छे से अभी कहाँ पर है invocation prayer. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण परांच गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 54 and onwards. भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 54, 54 और उससे आगे. So we'll try to take this up from here this evening. So I'll also try to display the shloka. It's a very interesting shloka. Now Arjuna is the author or the speaker of this text. So Arjuna is saying, तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है वाचा, वाचा means Arjuna is the speaker. So here it says, so let's go word by word. Arjuna vacha, Arjuna said, Sthita pragyasya, of one who is situated in fixed Krishna consciousness. Situated in fixed Krishna consciousness. Ka, what? Bhasha, language. Samadhi, stasya, of one situated in trance. Keshava, O Krishna. Sthitadhi, one fixed in Krishna consciousness. Kim, what? Prabhasita, speaks. Kim, how? Asita, does remain still. Vrajeta, walks.
Kim, how? Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? And what is his language? How does he sit? And how does he walk? Srila Prabhupada explains in the purport. As there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly, one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, a diseased man has a symptom by which he is known as diseased or as learned man, as his symptoms. So a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. The most important is how a man in Krishna consciousness speaks. For speech is the most important quality of any man. It is said that the fool is undiscovered as long as he does not speak. And certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and the matters relating to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. This is a very interesting shloka. I would request someone with Hindi book. आप में से किसी के पास हिंदी book है? So can someone please read it little loudly and clearly? Okay, let me request Durga Mataji, she's here. Can you please unmute and speak? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? ट्रांसलेशन. Yeah, and purport as well. Yeah. जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार वह लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है तथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों के से त्रिगुण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों के विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you very much. Yeah, thanks a lot. So we will try to recite this shloka. I hope my screen, okay, my screen is not visible. Now you can see my screen. So मैं इस श्लोक को बोल रहा हूँ. You can also unmute and repeat after me. आप भी repeat कर सकते हैं, unmute रख सकते हैं अपने आप को. And let's try to recite this. Maybe at least some of you can repeat. स्थितप्रज्ञस्य भास्या समाधिस्तस्य केशव
समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् किमासीत् व्रजेत Okay, very nice. Someone else want to recite also? आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे, recite चाहेंगे? And I can repeat after you. Yes, Saket Prabhu can recite, and I will repeat after you, Saket Prabhu. I have to read it in sloka. Sorry? Sloka पढ़ना भी मुझे? हाँ, you want to read shloka? Yes, yes. Okay, please go ahead. स्थित प्रज्ञस्य का भाषा Okay, you can read, yeah. Okay. स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्. Okay, very nice. Nikita Mataji want to recite also. This is a very nice shloka to also learn. ये श्लोक जो हम याद भी कर सकते हैं. So some more devotees can recite. Yes, Nikita Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी. Just 1 second. I'll put others on mute to remove the background noise. And now you can unmute. हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna. स्थित प्रज्ञ. So it starts. I'm sorry. I also did the mistake. It starts with Arjuna Vacha. We are forgetting that. So maybe you can start from there. अर्जुन उवाच. Arjuna Vacha. स्थित प्रज्ञस्य का भाषा. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव. समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत. स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्. किमासीत व्रजेत किम्. Thank you, very nice. Dr. Patil also wants to recite. Yes, Dr. Patil, kindly unmute. अर्जुन उवाच. Arjuna Vacha. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव. समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत. स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्. किमासीत व्रजेत किम्. Very nice. Dr. Patil, you wanted to read in Marathi, right? Did you want to read the translation in Marathi? Although we will not understand that. Yes, please do that. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? तात्पर्य, ज्याप्रमाणे प्रत्येक मनुष्याच्या विशिष्ट अवस्थेत त्याची विशिष्ट लक्षणे असतात, त्याप्रमाणे कृष्ण भावनायुक्त भक्ताच्या बोलण्याची, चालण्याची, विचार करण्याची आणि अन्य क्रियांची विशिष्ट लक्षणे असतात. एखादा श्रीमंत माणूस त्याच्या लक्षणावरून श्रीमंत म्हणून ओळखला जातो. रोगी मनुष्य त्याच्या लक्षणावरून रोगी म्हणून ओळखला जातो किंवा विद्वान मनुष्य त्याच्या लक्षणावरून विद्वान म्हणून ओळखला जातो. त्याचप्रमाणे दिव्य कृष्ण भावनेमध्ये असणाऱ्या मनुष्याच्या विविध कृतींची वैशिष्ट्ये अशी लक्षणे असतात. भगवद्गीतेच्या आधारे मनुष्य अशा भक्ताची विशिष्ट लक्षणे जाणू शकतो. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कृष्ण भावनेतील मनुष्य कसा बोलतो, कारण बोलणे हा मनुष्याचा सर्वात महत्वपूर्ण गुण आहे. असे सांगितले जाते की मूर्ख मनुष्य बोलत नाही तोपर्यंत त्याला आपण ओळखू शकत नाही, आणि निश्चितपणे उत्तम वस्त्रे परिधान केलेला मनुष्य बोलत नाही तोपर्यंत त्याच्याविषयी काही जाणता येत नाही. तथापि ज्या क्षणी तो बोलतो त्या क्षणी त्याचा स्वभाव प्रकट होतो. कृष्ण भावनाभावित मनुष्याचे मुख्य लक्षण म्हणजे तो केवळ श्रीकृष्ण आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या गोष्टीविषयी बोलतो.
त्याची इतर लक्षणे खाली सांगितल्याप्रमाणे आपोआपच प्रकट होतात. हरे कृष्ण. Very nice. Thank you. So it was nice to understand little Marathi. Thank you, Prabhu. So we have variety of devotees from different parts of the country, and some are joining from different countries as well. So we fully respect you're coming here. So yes, so this is a very interesting discussion. यहाँ पर Arjun is now asking, the spiritual subject matter is quite confusing. आप देखते हो खास तौर से भारत में ये जो स्पिरिचुअल डिस्कशंस है, इट कुड बी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग अनलेस अगर हमारे पास एक प्रॉपर शेल्टर ना हो, प्रॉपर एक ऑथराइज्ड परंपरा का नॉलेज ना हो, इट कुड बी सुपर कंफ्यूजिंग. कोई किसी भी चीज को डिवोशन बता सकता है बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड रेगुलेशन. जैसे कि अगर आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में कोई एक फॉर्मूला को बताना है या कुछ भी चीज को एक्सप्रेस करना, सो देयर इज अ कंप्लीट body of physics or chemistry where you cannot just say okay, I feel like this or I feel like that, correct? But in the spiritual discipline, because it is so open, anyone can go and publish a book and say this is Bhagavad Gita. Therefore it is very confusing. इसी तरह जो spiritual aspects हैं, some people think कि to become a ज्ञानी is perfect. Some people think to become a renunciant, यानी कि a sannyasi is the perfection of life. While some other people think, कुछ लोग दूसरे लोग हैं वो सोचते हैं कि भगवान में लीन हो जाना, that is the perfection of life. कुछ लोग सोच रहे हैं अष्टांग योगा is the perfection of life. कुछ लोग सोच रहे हैं हठ योगा is the perfection of life. It's quite confusing. So therefore, now Arjuna is asking this question, that who is a sthita pragya, who is a fixed up devotee of Krishna? So he is asking, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? तो भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का क्या symptoms हैं? How does he speak? वो क्या बोलते हैं? What is his language? How does he sit? How does he walk? To become fixed in Krishna consciousness, जब तक हम Krishna consciousness में fix नहीं होंगे, हमारी mind और senses, they will always keep troubling us. So just like कोई एक बहुत successful cricket player के बारे में सब पूछते हैं कि क्या खाता है, उसको मीनू में वो क्या लेता है, सुबह कब उठता है, उसकी लाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, नहीं सब लोग जानना चाहते हैं उसका पर्सनल लाइफ कैसा है, या फिर प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल लाइफ जानना चाहते हैं. सो अर्जुना is here asking the details of life of a person who is fixed in transcendental consciousness. और पूछ रहे हैं, और अब यहाँ पे प्रभुपाद जी परपोर्ट में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि we know a person by his symptoms. जैसे कि एक बीमार आदमी उसके सिम्टम से पता चलता है, एक foolish person also is known by his symptoms. A learned person also is known by his symptoms. जब एक मूर्ख व्यक्ति कोट पैंट पहन के बहुत अच्छे से स्मार्ट बन के बैठ जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कितना मूर्ख है. जैसे वो बोलना शुरू होगा तब पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है कि नहीं. आपने वो बचपन में एक स्टोरी सुना होगा कि एक बार एक वो सियार होता है या कौन होता है मैं भूल गया, वो पेंट के मतलब रंग के डिब्बे में गिर जाता है और फिर वो सारे लोग उसको अपना सोचते हैं कोई बहुत यूनिक कोई आया है ये जानवर, और सब उसे डरते हैं और सोचते हैं उसको अपना राजा बना देते हैं. दे गिव हिम सो मच रिस्पेक्ट. लेकिन एक बार जब जंगल में वो सब बोलने लगते हैं तो वो भी रोक नहीं पाता अपने कैरेक्टर्स को, और वो बोलने लगता है. और एक बार मैं एक और स्टोरी सुन रहा था कि एक बार वन टाइम द डॉग वाज मेड ए किंग, और उस डॉग को राज सिंहासन पे बैठाया गया, उसके गले में माला थी, सिर पे मुकुट था, लेकिन और वो बड़ी अच्छे से मीटिंग ले रहा था, पूरे राज्य का पूछ रहा था कि क्या चल रहा है राज्य में, क्या हो रहा है. और एकदम से एक व्यक्ति जो शूज पहनकर, चमड़े के शूज पहनकर उसकी सभा में आ गया
तो जो डॉग था वो सिंहासन से एकदम अपना मुकुट फेंक कर, अपनी माला फेंक कर जल्दी से जाके उसके पाँव के पास जो जूते थे वहां पे जाके उसको, क्योंकि समटाइम डॉग्स लाइक टू ईट और मे बी लाइक टू टेक दिस स्लीपर्स इन देयर माउथ, तो वो अपना जो आर्टिफिशियल पोजीशन था उसको भूल गया, मतलब जितने जो वहां पे आर्टिफिशियली वो बिहेव कर रहा था भूल गया, वो अपनी actual symptoms back. So we will know by symptoms. Similarly, those who are devotees of the Lord, they also have their symptoms. हमारे भी symptoms हैं. A devotee will be known by his symptoms. What are the symptoms? How does he speak? How does he walk? How does he sit? And how does he? Most important, Prabhupada ji says is how does he speak? तो जो एक भक्त है उसको he is devotees are known for how they speak especially. तो यहाँ पर अब भगवान अर्जुन को उनका जो ये क्वेश्चन है उसको आंसर कर रहे हैं, कई सारे श्लोकों में भगवान इसको आंसर कर रहे हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. स्थित प्रज्ञा. तो यहाँ पे बता रहे हैं श्री भगवान वाचा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट सेड, ओ पार्थ, when a man gives up all variety of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान उसको बता रहे अर्जुन को कि आप देखोगे पिछले कई श्लोकों में ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन शब्द यूज हुआ है, यानी कि सेंस एंजॉयमेंट, which means essentially, which means giving pleasure to one's own senses, to follow the dictates of mind and senses. अपने mind और senses के dictates को follow करके अपने senses को pleasure करने का जो process है उसको क्या बोला गया है? Sense gratification. But here he says when mind is thus purified, so Krishna is now telling of a pure consciousness. हमारा जो जब तक हमारा माइंड एक कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस में होगा, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड इन एनीथिंग दैट वी डू. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा माइंड बहुत ज्यादा एनवी से कंटेमिनेटेड है, ईर्ष्या से, तो हमारा माइंड, सबके माइंड का अलग अलग फ्लेवर है. कोई एनवी से कंटेमिनेटेड है, कोई लस्ट से कंटेमिनेटेड है, कोई एंगर से कंटेमिनेटेड है. और आज भगवान इन सब का रूट कॉज भी बताएंगे आगे जाने वाले श्लोकों में. बड़ा इंटरेस्टिंग है. कई बार लोग को प्रॉब्लम तो पता होता है, कई बार लोग कहते हैं यार मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन ये क्या है, क्यों गुस्सा आ रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज, द लॉर्ड विल एक्सप्लेन टुडे. यू नो व्हाट लीड्स टू व्हाट, दैट लॉर्ड विल एक्सप्लेन. सो हियर द लॉर्ड इज टॉकिंग ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस. सो दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्योर कॉन्शियसनेस. तो यहाँ पे बता रहे हैं, if someone can read quickly the next 55th text in Hindi, कोई हिंदी में पढ़ेंगे, one who has a good network, या अनुभव प्रभु can read 55 text. श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है. Very nice. So here I am trying to put this on a slide. So जो 55 श्लोक है, symptoms of a sthita prajna. So here it says he is always steady. इसमें आप purport में श्रीला प्रभुपाद जी explain कर रहे हैं कि he is always steady in his determination. So it starts with a steady determination. He is fixed in his intelligence, pure transcendental consciousness. स्थित प्रज्ञा कौन है? वो है जो कि पूरी तरह fixed है, and he is situated in pure consciousness. And what is the meaning of that pure consciousness? He gives up the variety of sense gratification. So one can have different varieties of sense gratification, which is built on combination between mind and senses. हमारा mind और senses जो हमारे लिए एक नेटवर्क बना देता है जिसमें हमें इंद्रिय तृप्ति, जैसे किसी आदमी को सब जानते हुए भी उसको स्मोकिंग करना अच्छा लगता है, that it is not good for me, even knowing it's not good for my physical health, what to speak of spiritual health. Physical health के लिए सबको पता है कि smoking is not good, but the influence of the sense gratification is so strong that
what that it leads one, it like forces one to go in that direction. लेकिन जो एक स्थित प्रज्ञ है, वो कौन व्यक्ति है? Who is the person in pure consciousness? He gives up variety of sense gratification. His mind becomes purified and he is always engaged in serving the Lord. And then he finds satisfaction in serving Krishna. Now, it's a very important question. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इज इट पॉसिबल इवन, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति, क्योंकि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है इट इज नेचुरली वेरी टेस्टफुल फॉर दैट पर्सन, उसको बहुत मजा आता है. जैसे जो सिगरेट स्मोकिंग करता है उसको आप बोलो कि स्मोकिंग करना छोड़ दो, अगर वो आपको प्रॉमिस कर भी देगा तो मोर और लेस मोस्टली ही विल गो बैक एंड स्मोक अगेन. सिमिलरली वी मे नॉट बी स्मोकिंग सिगरेट, बट कोई भी हमारा जो हैबिट है जो हमें सेंस एंजॉयमेंट देता है, that becomes very attractive for us, it becomes very much lucrative for us, and हमारा माइंड, हमारा सेंसेस जो पूरी तरह से क्या होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है. बट the beautiful process of Krishna consciousness is so powerful that it situates a person on a higher consciousness, it situates a person on a elevated consciousness. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिख रहे हैं, therefore one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for this devotional service will instantly help one on the plant platform of transcendental consciousness. तो हमारी consciousness जो है उसको तो satisfaction चाहिए. तो अगर हमें lower taste के satisfaction को छोड़ना है, so we have to choose the higher taste. We cannot live without taste. We want to have taste, otherwise the life will be distasteful. So we want some rasa, हमें अपने life में कुछ रसा चाहिए, some taste चाहिए. But the problem is that in contaminated state, this mind is always looking for satisfaction in the lower taste. But as devotee, when he taste, जब मैंने एक बार आपको पहले भी शायद example दिया था, that a little child is always going and eating mud. So the mother, she is stopping, but उस बच्चे को उसमें टेस्ट आ रहा है, he has developed taste in eating mud. आप देखते हो वो बच्चा चोरी करके भी, छुप के भी उसको खाता है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ टेस्ट आ रहा है. प्रॉपर बोलते हैं he is getting rasa in eating that mud. But how to get rid of the lower taste? कई लोग, कई philosophers, आज की डेट में भी कई philosophers ऐसा प्रपोज करते हैं कि आप इस लोअर टेस्ट को पूरा सेटिस्फाई कर दो. वो बोलते हैं इस लोअर टेस्ट को आप पूरा सेटिस्फाई कर दो तो आप पूरी तरह इस टेस्ट, हमें भी ऐसा फील होता है ना कि मैं इसको चलो सेटिस्फाई कर लेता हूँ. जैसे किसी को स्मोकिंग का या ड्रिंकिंग का तो सोचता है कि चलो मैं इसको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा. बट सेटिस्फाइंग द सेंसेस is like putting the fire into putting घी into fire. जैसे आप यज्ञ में देखते हो ना कि हम जैसे घी डाल देते हैं खूब सारा, तो ऐसा लगता है एक बार अग्नि शांत हो गई है. देखा आपने कभी? ऐसा लगता है अग्नि एकदम शांत हो गई, लेकिन आप देखते हो होता क्या है एक्चुअली, क्या होता है कि वो अग्नि कुछ ही सेकंड के लिए शांत होती है, उसके बाद वो अग्नि और बढ़ जाती है. तो जब हम अपने माइंड और सेंसेस की बात को मानकर उनको सेटिस्फाई करते हैं तो क्या होता है, वो जो सेंसेस का जो डिमांड है वो और बढ़ जाता है. इस दुनिया में सारे लोग जो है इस एक कारण से भी परेशान, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, हम सब भी, कि हम अपनी डिमांड्स को, अपने सेंसेस की डिमांड को पूरा करते रहते हैं और वो सेंसेस और ज्यादा डिमांड करते रहते हैं. हमें थोड़ा एक अच्छा सैलरी मिल रहा है, अभी हमें चाहिए और अच्छा, अगली बार हमें चाहिए और अच्छा. तो हम लोग का वो जो एंजॉयमेंट का जो टेंडेंसी है, that is always on and it is very natural, it cannot be given up. उसको केवल हम चेंज कर सकते हैं by connecting it properly to Krishna. When we connect our desires of satisfaction to desire of Krishna's satisfaction, that is called as transcendental consciousness. और ऐसे स्टेट में then a person is not disturbed. He says in the next shloka, one who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, one is free from attachment, fear and anger, is called a stage of steady mind. Can you imagine this state? हम लोग इस स्टेट को इमेजिन कर सकते हैं कि we are not affected by happiness, हमें हैप्पीनेस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है,
अटैचमेंट नहीं है, फियर नहीं है, एंगर नहीं है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ ए सेज ऑफ स्टेडी माइंड। ये एक डिवोटी का कॉन्शियसनेस है। ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, ही इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम एवर्जन। अटैचमेंट मीन्स किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होना, एंड एवर्जन मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत होना। सो ए डिवोटी, ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड एवर्जन, दोनों ही चीजों से फ्री है। His interest is to satisfy Krishna. If something can be used in, जैसे for example, कई सारे spiritualist वो आपको बोलते हैं कि आपको बहुत सिंपल लाइफ जीना चाहिए, आपको गाड़ी नहीं लेना है, अच्छा अगर लेना भी है तो ऑल्टो लो बस, समथिंग लाइक दैट, खाना भी है तो केवल खिचड़ी खाओ बस, ऐसा। क्योंकि उनको डर लगता है कि, और ये नेचुरल है, क्योंकि जैसे जैसे हम सेंस ऑब्जेक्ट को सेंसेस को देंगे, सेंसेस का डिमांड और बढ़ जाता है। इसलिए वो बोलता है स्टॉप, आप सेंसेस को ऑब्जेक्ट्स को दो ही मत। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट टीचेस अस दिस। कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट टीचेस कि हम सेंसेस की डिमांड्स को आर्टिफिशियली सप्रेस कर दें। अगर हम सेंसेस की डिमांड्स को आर्टिफिशियली सप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, एक दिन वो बहुत बड़े वोल्केनो के रूप में बाहर निकलेंगे, एक दिन बहुत बड़े। और फिर हमारा जितना भी डिटर्मिनेशन, जैसे बहुत सारे लोग निर्जल फास्ट रखते हैं, कभी निर्जल एकादशी या कुछ एक फास्ट रखते हैं, उस दिन बड़े बहुत ज्यादा अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं, और अगले दिन एकदम वो आउटबर्स्ट हो जाता है, बोलते हैं कल फास्ट किया था तो खूब आने दो, ये खाएंगे ये खाएंगे ये खाएंगे। नवरात्रों में कुछ लोग बहुत फास्टिंग वो करते हैं कि प्याज नहीं खाएंगे या नॉन वेज नहीं खाएंगे, और जैसे ही नवरात्र कुछ होते हैं पूरे खत्म होते हैं, पूरे जो शराब की दुकान है और पूरा सब कुछ भर जाता है, एकदम भीड़ आ जाती है वहां, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सप्रेशन है। और जैसे इसी तरह विश्वामित्र मुनि हम देखते हैं कि ही वाज सप्रेसिंग हिज सेंसेस, लेकिन जैसे ही वो सेंस ऑब्जेक्ट सामने आएगा दोबारा, क्योंकि आपने सिर्फ उस एक्टिविटी को टेम्परेरीली सप्रेस किया है, लेकिन जैसे ही उसका फिर से टेस्ट मिलेगा, वो एकदम से हम आउटबर्स्ट होगा, और वो आउटबर्स्ट कैसा होगा, पहले से भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सेंसेस को खाली रिस्ट्रेन करके हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाउ वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस? वी हैव टू यूज आवर सेंसेस, हमें अपने सेंसेस को यूज करना है, but the purpose of use of senses should be to give satisfaction to Krishna. And in such a state, then the senses who can be the reason for our disturbance, which can be reason for our bondage, वही senses जो हमारे bondage और disturbance का कारण हो सकती है, the same senses can become the reason for our liberation. जैसे एग्जाम्पल के लिए जीवा, ये जो हमारी सभी सेंसेस में से जीवा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीवा इज वेरी पावरफुल। रूप गोस्वामी सेज जीवा हैज टू फंक्शन, वन इज टू ईट एंड वन इज टू स्पीक। और ये दोनों ही चीजें हम बहुत विरोशियसली कर सकते हैं। वी कैन ईट अ लॉट एंड वी कैन स्पीक अ लॉट, एंड दिस जीवा कैन बिकम द रीजन फॉर आवर एंटेंगलमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट सेम जीवा, इसी जीवा से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। यू अंडरस्टैंड? सेम जीवा से हम लोग अपने लिए माया का पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड की प्रजल्पा, गपशप, बहुत सारी बातें, दूसरों की निंदा, ये जीवा इज सो फ्री। खाने के ऊपर फिर भी कोई लिमिट होता है, आप 2 चपाती 4 चपाती 10 चपाती के ऊपर अपने आप एक लिमिट आ जाएगा, लेकिन बोलने के ऊपर कोई लिमिट नहीं आता नॉर्मली। सो वी कैन स्पीक अ लॉट एंड वी कैन क्रिएट जस्ट लाइक ए फ्रॉग। रूप गोस्वामी एग्जांपल देते हैं, जस्ट लाइक ए फ्रॉग, एक जो मेंढक होता है वो बहुत जोर जोर से टटराता है, वो सोचता है कि मैं बड़ा इंप्रेस कर रहा हूँ लोगों को, बहुत अच्छा गा रहा हूँ, मैं शी फ्रॉग को इंप्रेस कर रहा हूँ। लेकिन इंप्रेस कौन हो जाता है? शी फ्रॉग की बजाय स्नेक। एक स्नेक आता है, उसको पता चलता है मेंढक यहाँ पे टरटरा रहा है, और वो मेंढक को एकदम से आके ग्रैब करके खा जाता है। तो ये जो सेंसेस हैं ये बहुत पावरफुल हो सकती है। जैसे आपको पता है कि एक हाथी को कैसे पकड़ा जाता है?
जंगल में अगर हाथी को पकड़ना हो तो किसी को पता है, एक हाथी को, एलिफेंट इज सो पावरफुल, आप उसको रस्सी वस्सी बांधोगे वो उड़ा देगा आपको इतना देर। सो हाउ डू वी कैच एलिफेंट? यस, अनुभव प्रभु is smiling, he wants to say something, he knows. आई थिंक पानी में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, Okay, क्योंकि पानी में उसकी ताकत थोड़ी कम होती है। okay, okay, anyone? Yeah, someone says big hole with mind. Okay, yeah, with mind. So yes, Lakshmi Mata ji want to say something. Yes, Lakshmi Mata, you want to please unmute? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। Yes, ma'am. प्रभु जी, Yeah, please go ahead. Sorry, you are on mute. प्रभु जी, नकली हथनी बना, आप बार बार अनम्यूट हो, आप म्यूट हो जा रहे हैं, सॉरी। कैन यू प्लीज अनम्यूट? प्रभु जी नकली हथनी बनाई जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, और फिर एक वो उसके लिए जाल बिछाया जाता है ताकि वो उसके लालच में आए और उससे गिर जाए। उसके सेंसेस को वो किया जाता है, उसके सेंसेस यस, यस। सो हाथी को, जैसे कई लोग यहाँ पे चैट में भी लिख रहे हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, लेकिन उस गड्ढे तक हाथी को लाया कैसे जाता है? ए फीमेल एलिफेंट इज मूव्ड, और हाथी जो है उस फीमेल एलिफेंट, और फिर वो इस तरह से ट्रैक करते हैं कि फीमेल एलिफेंट को एकदम साइड कर देते हैं, और वो जो हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है, और फिर वहां से उसको कैच करता है। तो सेंसेस जो है, इट कैन बी वेरी पावरफुल, जस्ट लाइक जो इंसेक्ट्स है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, पर they are so attracted to the light. वो आप देखते हो बारिश के मौसम में, they become so attracted to their light, to that light, because that is giving them some satisfaction, and they don't know कि वहां पे मंडराते हुए they actually die. Similarly, जो भंवरा होता है, वो फूल के उसको फ्रेगनेंस, उसका जो टेस्ट लेते लेते इतना इंटॉक्सिकेट हो जाता है कि शाम को फूल बंद हो जाता है, and he dies inside that flower. So like that, so senses can make us really go wild, but same senses, when engaged in service of Krishna, can become a great support to perfect the life. हमारी यही सेंसेस, बिकॉज हमें यूज तो इन्हीं सेंसेस को ही करना है, यही बॉडी मिला है। अभी दूसरे का बॉडी लेके तो हम लाइफ को परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसी बॉडी से हमें लाइफ को कैसे परफेक्ट करना है? बाय यूजिंग दीज वेरी सेंसेस, आवर touch, our know. For example, a beautiful example is given little ahead. That example is given in text 61. Maybe we can discuss it right now, फिर we will go back. टेक्स्ट 61 में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो 4th चैप्टर से ये एग्जाम्पल दिया है, एंड दिस एग्जाम्पल इज टॉकिंग अबाउट महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, और यहाँ पे बताया क्या, यहाँ पे बीच में देखेंगे आप, परपोर्ट के बीच में लिखा हुआ है, तीन वो पैराग्राफ दिए हुए हैं। सवै मना कृष्ण पदारविंदयोर वाचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चक्रच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगाल्य दर्शनादृशो तद्भृत्य गात्रा स्पर्शे अंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशा पदाभिवन्दने कामं च दास्य नातु काम काम्यया यतोत्तम श्लोका जनाश्रयारति। ब्यूटीफुल श्लोका, दिस इज ए सेलिब्रेटेड प्रेयर फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में भगवान के एक महान भक्त अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया गया है इन सारे इस कॉन्टेक्स्ट में, कि कैसे अम्बरीश महाराज अपने सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में यूज करते हैं। अगर हमने सेंसेस को आर्टिफिशियली स्टॉप कर दिया, जैसे मैंने बताया, वो हमारे लिए विस्फोटक हो सकता है, हमारी सेंसेस और ज्यादा विरोशियस हो सकते हैं। अगर हमने सेंसेस को
सप्रेस नहीं किया बल्कि उसको फीड करना शुरू कर दिया, एक जैसे आग में घी डालने की तरह, तो भी वो सेंसेस विरोशियस हो जाएंगे, तो पक्का विरोशियस हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। अगर आप सेंसेस को फीड करोगे तो भी प्रॉब्लम है, और सेंसेस को बिल्कुल सप्रेस कर दोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो फिर करें क्या? तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल से बता रहे हैं क्या, कि अम्बरीश महाराज अपनी सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते थे। यहाँ लिखा है, किंग अम्बरीश फिक्स्ड हिज माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अपने मन को कहाँ पे फिक्स करते थे? भगवान के लोटस फीट में। He engaged his words in describing the abode of the Lord. और वो अपनी जो स्पीच है उसको किस लिए यूज करते थे? भगवान के धाम को डिस्क्राइब करने के लिए। His hands in cleansing the temple of the Lord. अम्बरीश जो है महाराज थे, he was a king, but वो रोज आके भगवान के मंदिर को अपने हाथों से साफ करते थे। He used to use his hands to clean the temple of the Lord. His ear in hearing the pastimes of the Lord. He used to hear the pastimes of the Lord. भगवान की लीलाओं को सुनते थे, कानों का यूज वैसे करते थे। His eyes in seeing the form of the Lord. अपनी आंखों को यूज करते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। His body in touching the body of the devotee. और अपने बॉडी को यूज करते थे दूसरे भक्तों से आलिंगन करने के लिए, उनको गले लगाने के लिए। His nostril in smelling the flavor of the flower offered to lotus feet of the Lord. His tongue in tasting tulsi leaf offered to him. अपने नाक से क्या करते थे? जो भगवान को फूल ऑफर किए उनको सूंघते थे। तुलसी जीवा से अपनी तुलसी को टेस्ट करते थे। His legs in traveling to the holy place. जहाँ पे भगवान का ब्यूटीफुल टेम्पल्स है उन प्लेसेस पे जाते थे। His head in offering obeisances. अपने सिर को यूज करते थे भगवान के सामने झुकाने के लिए। His desires in fulfilling the desires of the Lord. उनका जो इच्छा था कि भगवान के डिजायर्स को मैं पूरा करूं। All these qualifications made him fit to become a matpara devotee of the Lord. तो ये एक डिवोटी का लिए चेरिश्ड गोल है या ड्रीम है, to become a matpara devotee, to become a dear devotee to Krishna. And how is it possible? Everything that we have, we connect it to Krishna. इसी पॉइंट को भगवान लगातार कई सारे श्लोकों में एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम देखेंगे। You understand? So अम्बरीश महाराज is one of the beautiful examples. जो एक राजा होते हुए भी, हमें से कई लोग को लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, हमारा लाइफस्टाइल बहुत वो है, बिजी करने वाला है, we are busy in office, we are busy, but those who are serious about the purpose of life, they will not just keep saying that we are busy and we don't have time. They will find out time and they will use their senses in service of Krishna. Someone is saying कि संसारिक कार्य करते हुए हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? अम्बरीश महाराज तो पूरी तरह से एंगेज थे। इसका ये मतलब नहीं कि अम्बरीश महाराज राज्य नहीं कर रहे थे। He was a king. He had to take the meetings, he has to do the administration. और तो आज के टाइम में अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ प्रैक्टिकली इट कैन बी डन, बिकॉज अम्बरीश महाराज तो सूंघ रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। इट इज पॉसिबल व्हेन आवर लाइफस्टाइल इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा। तो एक भक्त का लाइफस्टाइल कैसा होता है? ये कैसे पॉसिबल भी है कि हम अपनी सेंसेस को कृष्णा के लिए यूज करें, जबकि उधर से कॉर्पोरेट में ऑफिस का डिमांड है, इधर से घर पे वाइफ ने सामान मंगाया है, बच्चों को देखना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली सिचुएशन, वी हैव टू अर्न ए लॉट। हमें तो पूरा दिन मटेरियल कॉन्शियसनेस में रहना पड़ता है, विच इज ट्रू। बट by making our lifestyle which has center, where the center is Krishna, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जिसके सेंटर कृष्णा है, then all our activities can become Krishna conscious. तो एक डिवोटी का लाइफस्टाइल कैसा होता है? आप सबने कैमरा बंद किए हुए ना, मुझे पता नहीं चलता आप लोग सुन रहे हो कि नहीं। Are you here? I am going to share something very important. Are you all here? Please turn on your camera. कभी इमरजेंसी हो तो बंद करिए, अदरवाइज तो ऑन रखना चाहिए ना सबको। So how is the lives of a devotee? एक डिवोटी का जीवन कैसे होता है? जैसे आप में से भी किसी ने पूछा, I don't know who, but someone asked, how is it even possible? It is possible. How? जैसे डिवोटी उठता है, एक डिवोटी का लाइफस्टाइल कैसा होता है? एक जो डिवोटी है भगवान के, उनका लाइफस्टाइल होता है, he wakes up early in the morning, सबसे पहले, क्योंकि he knows कि पूरे दिन में बहुत सारा एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारा काम होने वाला है कि नहीं? पूरा दिन हमारा पैशन में हो सकता है।
So he gets up early. So devotee सबसे पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करता है, अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस को सिक्योर करता है जल्दी उठकर। जल्दी उठता है devotee, he takes a bath early in the morning and then उनके जो घर है, डिवोटी का घर है, उसको, और ये किस डिवोटी की बात कर रहे हैं हम? ऐसे डिवोटी की बात नहीं कर रहे जो पता नहीं कहाँ आपको मिलेंगे, वो अम्बरीश महाराज जैसे। मैं उन लोग, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। वी कैन लिव दिस लाइफ, सो मेनी डिवोटीज आर लिविंग दिस लाइफ, सो मेनी पीपल आर लिविंग दिस लाइफ। तो उनके घर पे एक छोटा सा टेम्पल वो बनाते हैं जिसमें राधा कृष्ण का, भगवान का फोटो रखते हैं या फिर मूर्ति रखते हैं, और तुलसी महारानी को, तुलसी देवी का गमला वो रखते हैं। और जैसे ही उठते हैं नहाकर, फिर वो भगवान को प्रणाम करते हैं। कुछ थोड़ा देर के लिए, 10 मिनट के लिए वो भगवान का मंगल आरती गाते हैं, भगवान के इसको वर्शिप करते हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है इस एज में? द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। डिवोटीज क्या करते हैं? सुबह भगवान के, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस होल्डर हो, चाहे वो कोई भी हो, ये शेड्यूल लगभग सब डिवोटीज फॉलो करते हैं। वो फिर भगवान के होली नेम्स को चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्योंकि अकेले ये करना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए नॉर्मली जो डिवोटीज हैं वो आसपास में किसी डिवोटी के साथ मिलके इसको प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर कोई डिवोटी नहीं है, आजकल तो वैसे अगर फिजिकली नहीं है तो ऑनलाइन कर लेते हैं डिवोटीज ज्वाइन, ऑनलाइन दूसरे डिवोटी। तो इसलिए हमने डेली मॉर्निंग में एक ऑनलाइन जूम मीटिंग डेली अवेलेबल रहता है, जो लोग उसमें आके चैंटिंग करना चाहें। तो एक साथ में जब हम चैंटिंग करते हैं, वी गेट दैट पावर। तो इस तरह से डिवोटी सुबह जो है चैंटिंग करता है। और एक डिवोटी अपनी लाइफ में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स को डिसाइड करता है कि मैं डेली मैं इतना तो चैंटिंग करूंगा। जैसे कि कुछ लोग 4 राउंड से शुरू करते हैं, दे चैंट 4 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो आई होप आप भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र को चैंटिंग करते होंगे। अगर आप नहीं करते हैं सो आई थिंक इट इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट चैंटिंग द होली। आप ऑलरेडी काफी कुछ भगवान के बारे में जाने हैं, भगवद गीता को जाने हैं, होली नेम के बारे में आप जाने, सो मे बी इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, ऑल्दो वन कैन चैंट एनी टाइम। जैसे अब जो लेडीज हैं, मे बी दे हैव टू कुक सम टाइम इन द मॉर्निंग, so if they have to cook, so definitely they can chant in the evening or in the afternoon whenever they get that time. So but the idea is one should chant the holy names of Krishna like that. So and devotees have इसी तरह से when they cook, जो भक्त अपने घर में कुछ कुकिंग करते हैं उसको पहले भगवान को ऑफर करते हैं, फिर जब उसको ग्रहण करते हैं, वो कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो उससे पहले वो प्रसादम प्रेयर्स को गाते हैं। इस तरह से आजकल के आधुनिक युग में रहते हुए भी, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में रहते हुए भी, सोसाइटीज में रहते हुए भी, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो समवन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सिमिलरली वो जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जैसे बाकी लोग, ये रंजू कुमारी जी ने पूछा था क्वेश्चन, बाकी लोग ऑफिस में क्या करते हैं? गपशप लगाते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। लेकिन जो डिवोटी है वो इन सब चीजों से दूर रहता है, वो अपने फिक्स रहता है, अपने काम को बहुत अच्छे से करता है। और अगर उसको छोटा सा कहीं ब्रेक भी मिल जाता है तो अपने मोबाइल में से जल्दी से भगवद गीता का ऐप खोल के उसमें से एक श्लोक पढ़ लेता है, उसको याद कर लेता है, या किसी डिवोटी से बात कर लेता है। इस तरह से उसका दिन में भी वो कृष्णा कॉन्शियस रहता है। और फिर जब घर को शाम को आता है वापस, फिर दोबारा से स्नान करके भगवान को प्रणाम करते हैं, और जो उनके घर पे प्रसाद बना है भगवान को खाना भोग लगाते हैं, और फिर सारा फैमिली उसको मिल करके लेता है, थोड़ा कीर्तन करता है, थोड़ा सा भगवद गीता स्टडी करते हैं। इस तरह से एक डिवोटी का लाइफस्टाइल होता है। और फिर रात को, ये नहीं कि रात को 12 बजे तक वो टीवी देख रहा है डिवोटी, क्योंकि रात को टीवी देखेगा 12 बजे तक तो अगले दिन सुबह उठना ही मुश्किल हो जाएगा उसको, है कि नहीं, जल्दी। तो डिवोटी चाहते हैं रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और जो टीवी है वो हमारे लाइफ का बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है। इसलिए मैंने देखा बहुत सारे डिवोटी, जब उनको समझ आ जाता है कि टीवी से जीवन का गोल नहीं मिलने वाला है, जीवन का गोल मिलेगा जब हम कृष्ण से कनेक्ट होंगे, इसलिए वो अपने टीवी को ढक देते हैं और बोलते हैं हो गया, बहुत टीवी देख लिया,
और फिर वो टीवी छोड़ के समय किसमें लगाते हैं? भगवत गीता पढ़ने। नहीं तो आपको जितना भगवत गीता पढ़ने में और भगवान का नाम लेने में समय मिलना था, वो सारा समय आपका टीवी ले जाए, है कि नहीं? डू यू फील लाइक दिस, है कि नहीं? आप 2 घंटा टीवी देख लेते हैं, कई लोग 2 घंटा क्या, कई लोग तो सुबह उठते ही टीवी भगवान का दर्शन करते हैं, ऑन कर देते हैं। हमारा भी ऐसे ही लाइफ स्टाइल था, लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में डिवोटीज से मिले, डिवोटीज ने बोला इतना सारा टाइम टीवी को दे दोगे तो भगवान को टाइम कब दो, है कि नहीं? तो इसलिए हाँ ठीक है, आपको कुछ न्यूज सुनना है, वो सब सुनना है तो आप थोड़ा सुन सकते हैं, अदरवाइज मिनिमाइज टेलीविजन। आप टीवी को मिनिमाइज कर देंगे, फेसबुक वगैरह का थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे, इतना टाइम मिल जाएगा भक्ति करने का, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि बस टाइम कम है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि सेंसेस को जब तक हम प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ना, ऐसा सोचेंगे नहीं मैं तो मन में ही भगवान का भक्त हूं, वो काम नहीं आने वाला है, वो काम नहीं आएगा, क्योंकि इट इज नॉट इन प्रैक्टिस, इट इज नॉट इन प्रैक्टिस, है ना? जैसे आप मन में सोचो कि मुझे साइकिल चलाना आता है, इट विल नॉट वर्क जब आपको साइकिल चलाना होगा। So therefore, one has to practice Krishna consciousness. इसको हमें प्रैक्टिस करना होगा। और कब से प्रैक्टिस करना चाहिए? कौन सी एज से? एनी गेस? आप में से कोई गेस करेंगे कब से प्रैक्टिस करना चाहिए? कितनी उम्र से? कोई कह रहा है रिटायरमेंट की एज से। ओके, रिटायरमेंट मतलब 60 साल। रिटायरमेंट मतलब कोई कह रहा है 5 साल, ये कैसे? कोई कह रहा है रिटायरमेंट और कोई कह रहा है 5 साल, कोई कह रहा है कभी से भी कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारे लोग आजकल रिटायर कोई होता है उसको भगवत गीता देते हैं, उनको लगता है अब इसके पास टाइम है, अब भगवत गीता पढ़ेगा। लेकिन आपने लाइफ को पहले ही जी लिया, अभी भगवत गीता पढ़ के हमने सारा अपना टाइम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब हमें पता चल रहा है, ये तो ऐसा हो गया कि वॉशिंग मशीन खरीद के जब वो चलाते चलाते जल गया वॉशिंग मशीन, तब हमने देखा कि मैनुअल में क्या लिखा था। मैनुअल में तो लिखा था कि इसमें इसको 5 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना है कि नहीं? तो तब उसका फायदा नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ तो फायदा है। लेकिन जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, है ना, तो भक्तों के हीरो कौन है? प्रहलाद। जैसे फिल्मी हीरो कोई है, क्रिकेट के हीरो कौन है? आजकल कौन है मुझे पता नहीं, जब मैं क्रिकेट देखता था उस समय वो कपिल देव होते थे क्रिकेट के हीरो, या सचिन तेंदुलकर उसके बाद होते थे, उसके बाद मुझे नहीं पता कि कौन है क्रिकेट के हीरो। तो एनीवे, तो वहां पे वो, लेकिन हमारे भक्तों के हीरो कौन है? भक्तों के हीरो हैं प्रहलाद, ये रियल हीरो हैं। ये वैसे नहीं कि कैमरा हीरो, कि कैमरा के सामने शॉट खेलते हैं, ये एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को जीते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, लाइक देयर आर मेनी डिवोटीज। एंड जो वैदिक कल्चर था उसमें जो डिवोटीज थे, किंग्स, बिग बिग किंग्स यूज्ड टू बी डिवोटी। और मैं इस मोमेंट पे जस्ट याद कर रहा हूं, आपको बताऊं एक ग्रेट किंग की स्टोरी जल्दी से। यू वांट टू हियर अबाउट द स्टोरी ऑफ ए ग्रेट किंग कॉल्ड कुलशेखर, महाराज कुलशेखर। सम ऑफ यू मे बी नोइंग हिम। he is one of the alvars in the south। तो महाराज कुलशेखर की मैं आपको बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताता हूं कि कैसे, आप लोग हैं यहाँ पे? हरे कृष्णा, आर यू ऑल हियर? नो वन इज हियर। Okay, Ramesh Prabhu is here at least. Okay, one person is here. I can go. So, I was telling the story of महाराज कुलशेखर कि कैसे जब हम अपने माइंड को, अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं, so they become attracted to the Lord। फिर हमें इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजों को अट्रैक्शन कम हो जाता है, और भगवान के जो प्रोसेस है भक्ति का, आप जब महाराज कुलशेखर की कथा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मे बी महाराज कुलशेखर he had become mad in Krishna consciousness, but actually he was not mad, he was in the highest ecstasy of Krishna consciousness। तो महाराज कुलशेखर का ऐसा कथा है कि he was a great devotee of Lord Ramachandra। और महाराज कुलशेखर का एक आदत था, जैसे अभी हम ये क्लास सुन रहे हैं, महाराज कुलशेखर रोज भागवतम कथा सुनते थे, और जो भी कोई उनके राज्य में लर्नेड ग्रेट सेजेस आते थे, महाराज कुलशेखर उनको इनवाइट करते थे और उनसे सुनते थे, और वहां पे भागवतम, रामायण, ऐसे सब स्क्रिप्चर्स सुनते थे। तो एक दिन उनके किंगडम में कुछ ग्रेट सेंट्स आए, और
वो उन्होंने कहा कि हम कई दिनों के लिए आपके राज्य में कथा करना चाहते हैं। तो महाराज कुलशेखर ने बोला मोस्ट वेलकम, आई विल पर्सनली हियर एवरी डे, मैं हर दिन आपकी कथा सुनूंगा। और वो जब आए तो उस समय कथा चलते 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 कहां पर पहुंच गई, उस समय पे पहुंच गई जहां पे भगवान श्री राम लंका की ओर लंका में पहुंच चुके हैं। और वहां पर ऐसा आता है ना, भगवान जो है वानरों की सेना के साथ वहां पर पहुंच गए हैं और अभी युद्ध शुरू ही होने वाला है। और उधर वहां पे सेना का डिस्क्रिप्शन आ रहा था कि भगवान राम के साथ तो केवल वानर हैं और सुग्रीव हैं और लक्ष्मण हैं, लेकिन रावण के पास बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं और बहुत इनबैलेंस्ड कंपटीशन है। रावण की सेना बहुत बड़ी है और भगवान राम के पास कुछ खास है नहीं। तो ये महाराज कुलशेखर जब इस कथा को सुन रहे थे, ही जब जब एक डिवोटी बहुत एडवांस हो जाता है तो वे भगवान को सुनकर भगवान को स्मरण कर सकता है। उसको उनको ये नहीं लग रहा था कि ये कथा बहुत पुरानी है। महाराज कुलशेखर जब सुन रहे थे कथा, उनको लग रहा था अभी हो रहा है, ये रामायण इज गोइंग राइट नाउ। एंड महाराज कुलशेखर ने जैसे जैसे वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, महाराज कुलशेखर सेड, ओ माय गॉड, I am sitting and enjoying this kingdom and Lord Rama is alone in Lanka. भगवान राम अकेले हैं। And महाराज कुलशेखर ordered his army. उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया, Let us all go to Lanka. हम सब लंका चलेंगे और भगवान राम के साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे। भगवान राम वहां पे अकेले हैं। सो जो उनके सेनापति थे वो समझ गए कि ये तो भक्ति भाव में आगे लग रहा है, कहाँ जाएंगे। उन्होंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन महाराज कुलशेखर बोले, कम ऑन, लॉर्ड रामा इज अलोन, वी आर एंजॉयिंग हियर सिटिंग इन द रॉयल पैलेस, कम ऑन, लेट्स गो एंड हेल्प लॉर्ड रामचंद्र। और उस सेनापति तो उनको ऑर्डर मानना पड़ा और वो सेना की तैयार हो गई, बहुत बड़ी सेना, कई दिनों का राशन बांधा, जस्ट बिकॉज महाराज कुलशेखर को ऐसा लग रहा है कि अभी चल रही है भगवान की लड़ाई, जबकि वो तो त्रेता युग में लड़ाई हुआ था। तो एनीवे, तो सेना, अब 2-3 सेनापति जो जनरल्स थे उन्होंने मीटिंग किया, बोले ये तो पागल हो गए लग रहा है, अब हम सेना को लेके कहाँ जाएंगे, वहां तो कोई लड़ाई हो नहीं रहा है, भगवान राम तो वो तो त्रेता युग में आए थे। लेकिन जो महाराज कुलशेखर थे, ही वाज वेरी वेरी क्लियर इन हिज इंस्ट्रक्शन। और फिर ये 2-3 जनरल्स ने ऐसा प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं, एक टुकड़ी को, सेना की एक टुकड़ी को आगे भेजते हैं और फिर जब हम बोलेंगे कि ये वहां से वापसी आते हुए हम एक टुकड़ी को आगे पहले भेज के दूसरी साइड से वापस बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि भगवान राम जीत गए। ऐसा बोलेंगे तो शायद महाराज कुलशेखर को समझ आ जाए कि जीत गए, खत्म हो गया। ऐसा ही हुआ, 2-3 सेना की टुकड़ी को दूसरे रास्ते से भेज दिया गया चालाकी से, और वापिस आए और बोले भगवान राम की जय हो, भगवान राम इज विक्टोरियस, युद्ध खत्म हो गया, भगवान राम जीत गए हैं। और महाराज कुलशेखर बड़े खुश हो गए कि भगवान राम जीत गए। तो महाराज कुलशेखर ने कहा, सब लोग चलो चलो अब वापिस चलते हैं। सब लोग वापिस आ गए और जैसे ही वापिस आए तो महाराज तो रोज सुनते थे भागवतम, वो जो कथा रोज चल रही थी। अगले दिन जब कथा में पहुंचे तो वहां पे और बता रहे हैं कि बस युद्ध शुरू ही होने वाला है और भगवान राम, उनकी सेना, सब लोग बहुत इनसिग्निफिकेंट है, रावण की सेना बहुत बड़ी है, वहां पर ये योद्धा है, ऐसे ऐसे ऐसे। महाराज कुलशेखर ने कहा, अभी तो युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो युद्ध चल रहा है, अभी तो युद्ध शुरू होने वाला है और भगवान राम अकेले, कम ऑन, मुझे किसी ने चीट किया लग रहा है, बट दिस टाइम नो वन कैन चीट मी, नाउ वी विल नॉट स्टॉप। और उन्होंने अपनी सेना को दोबारा आदेश दिया, उनकी सारी सेना दोबारा चल पड़ी। और अब जो जनरल थे उन्होंने फिर मीटिंग किया, बोले अब क्या हो सकता है, अब हम कैसे रोके भगवान इनको, ये तो पागल हो गए लग रहा है भक्ति में। तो कई बार दुनिया के लोग भक्तों को पागल समझ लेते हैं, लेकिन डिवोटीज आर नॉट मैड, दे आर रेलिशिंग द हाईएस्ट नेक्टर ऑफ, वो भगवान से इतना कनेक्टेड है कि भगवान की कथा को सुन के वो भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। जस्ट बाय हियरिंग कृष्णा's लीला, he is here, Lord Ramachandra's लीला, he is actually associating with the Lord। और फिर अब महाराज कुलशेखर को कोई रोक नहीं पा रहा है, सेना बहुत तेजी से लंका की ओर आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और अब पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गए, समुद्र के तट पर आ गए। महाराज कुलशेखर सबको कह रहे हैं चलो समुद्र को पार करना है, और सब लोग कह रहे हैं हम तो आगे नहीं जा सकते भाई, अब तो जान तो नहीं देंगे इस राजा के लिए, यहां तक तो आ गए। एंड देन महाराज कुलशेखर सबको ऑर्डर कर रहे हैं
लेकिन उनका ऑर्डर कोई मान नहीं रहा है। महाराज कह रहे समुद्र के अंदर चलो, तो सब लोग रुक गए और महाराज कुलशेखर जो है he was not stopping, वो सीधा समुद्र के अंदर चलते गए। and it is said, I was hearing in one place that Lord Ramachandra personally appeared before his great devotee Maharaj Kulshekhar, and then he embraced him, and then he brought him back, and Lord Ramachandra said, I am already victorious now, so don't worry, you don't need to go to Lanka. And then Maharaj Kulshekhar was so happy and blessed. So इस तरह एक डिवोटी जो है उसकी जो डिवोशनल एक्सटेसी है उसको कोई समझ नहीं सकता। तो इवन प्रेजेंट लाइफस्टाइल में भी वी कैन नॉट डू लाइक महाराज कुलशेखर, हम महाराज कुलशेखर की तरह तो नहीं कर सकते, हाँ, और ना ही हमारे पास सेना है। वी कैन नॉट डू लाइक महाराज अम्बरीश ऑल्सो, बट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस अंडर द गाइडेंस ऑफ ए डिवोटी, तो इसके लिए एक डिवोटी का गाइडेंस चाहिए। अंडर द गाइडेंस ऑफ ए डिवोटी one can practice Krishna consciousness. One can use all his senses to serve Krishna, and that is the perfection of senses. Otherwise, वही senses हमें कर्म बंधन में फंसाने का काम करेंगी, और यही senses हमें कर्म बंधन से completely free करने का काम करेंगे। Choice is ours, क्योंकि जब हम अकर्म करेंगे, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्शन करेंगे, वो एक्शन हमें क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। तो इस तरह से anyway, this story was a bonus, so I will need now 10 minutes extra because this story was a bonus, right? So it was not in the Bhagavad Gita discussion plan, but anyway, so here we are discussing now. Arjuna is Lord is continuing to Lord is, just a moment please. So here, where were we? Yeah, we were discussing that how using senses in service of Krishna is something what will purify. भगवान की सेवा में अपने senses को use करना। और यहाँ पे 58 वर्ष में भगवान बहुत अच्छा बता रहे, कह रहे कि one who is able to withdraw his senses from sense object as the tortoise does its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. तो जो भक्त हैं वो बहुत टॉर्टवाइज की तरह होते हैं, वो फालतू में अपनी सेंसेस को यूज नहीं करते। ऐसा नहीं कि जैसे कई बार हम कहीं ऑफिस में या कहीं भी मीटिंग में होते हैं तो सब लोग बोल रहे होते हैं कुछ गपशप किसी, और हमें लगता है यार हम नहीं बोलेंगे तो लोग कहेंगे इसको कुछ पता ही नहीं, इसलिए हमें भी लगता है वी फील फोर्स्ड टू स्पीक, है कि नहीं, चाहे आप उसमें इंटरेस्टेड ना भी हो। लेकिन ए डिवोटी डज नॉट फील फोर्स्ड, he uses his energy, his senses very carefully. He will not speak nonsense, he will not waste his time, rather he will invest his time. जब उसको सेंसेस की जरूरत होगी जहां पे यूज करने के लिए, his senses are, he will use them. जैसे कछुए को जब अपनी सेंसेस, अपने हाथों को बाहर निकालना होता है, he uses them, and when he does not, he will make himself compact like that. डिवोटी अपनी सेंसेस को यूज करता है जहां पर जरूरत हो, और क्योंकि ये सेंसेस को किससे कंपेयर किया गया, these senses are also compared to as venomous snakes. Anyway, we will talk about it little later. So now very important text, text 59. Let us quickly try to understand this. It is a shloka to be learned. Vishya vinivartante niraharasya dehina rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate Vishya vinivartante niraharasya dehina rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remain. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. तो उसी पॉइंट को भगवान यहाँ पे बता रहे कि हम कई बार, जैसे एक उदाहरण के लिए, आपने किसी एक बोतल में मिट्टी का तेल डाला, आपने उसको कई समय तक मिट्टी का तेल उस बोतल में ही रहा, लेकिन उसके बाद आपने मिट्टी का तेल खाली कर दिया, उस बोतल को वॉश भी कर दिया बहुत अच्छे से, सर्फ एक्सेल से धो भी दिया, लेकिन अगर आप उसको फिर से स्मेल करेंगे
तो कैसा क्या आएगा? क्या आएगा? You will still smell the kerosene oil. Yes or no? So there is no kerosene oil in the bottle now. लेकिन जो उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके नहीं होने पर भी it is still it can be felt. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर embodied soul, अगर एक जीवात्मा सेंसेस को जबरदस्ती रोक भी देगा, though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense enjoyment remains. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर नटशल में बोला जाए, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टेस्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट. अगर हम सेंस एंजॉयमेंट नहीं भी कर रहे, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इट्स अ वेरी टेक्निकल पॉइंट. अगर हम सेंस एंजॉयमेंट नहीं भी कर रहे, उसका जो टेस्ट है that will drag us back to sense enjoyment. जैसे विश्वामित्र मुनि, और बहुत समय तक तो उन्होंने कोई सेंस एंजॉयमेंट नहीं किया. इस तरह एक एग्जांपल है सोवारी मुनि. सोवारी मुनि जो है, he was doing तपस्या अंडर वाटर. He was a great yogi. और सोवारी मुनि could manage his senses and in such a way that he could stay under the water. इसलिए अपने सेंसेस को बिल्कुल वो he was completely not using his senses. लेकिन एक दिन उसने क्या हुआ, दो मछलियों को पानी में एंजॉय करते हुए देखा सोवारी मुनि. और जब उसने दो मछलियों को पानी में एंजॉय करते हुए देखा, they were trying to so then when he saw them enjoying, सवारी मुनि का वो जो टेस्ट था, पुराना टेस्ट, वो टेस्ट क्या हुआ, वापस आ गया. एंड ही केम आउट ऑफ द वाटर. और वहां पे जब वो पानी से बाहर आया तो वहां पे एक राजा की कुछ डॉटर्स, दे वर टेकिंग ए बाथ एंड सवारी मुनि wanted to now marry. He was a great yogi और पूरे अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रखा था. लेकिन वो सेंसेस का कंट्रोल खत्म हो गया. क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो टेस्ट था वो खत्म नहीं हुआ था. यू अंडरस्टैंड? तो आप जबरदस्ती कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसका टेस्ट खत्म नहीं होगा. तो क्या होगा? इट कैन कम एनी टाइम, इट कैन रिपीट एनी टाइम. सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज टू स्टॉप, टू रिमूव दैट टेस्ट. और वो टेस्ट कैसे रिमूव होगा? यहाँ पे बता रहे हैं, बाय एंड एक्सपीरियंसिंग ए हायर टेस्ट ही इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया, इट इज लाइक ए बिग सक्सेस. अगर आज ये पॉइंट हमें समझ आ गया, क्योंकि ये बहुत सटल पॉइंट है कि हम अगर सेंसेस को, सेंस एंजॉयमेंट को रोक भी देते हैं, उसका अगर टेस्ट खत्म नहीं होता, वो टेस्ट हमें कभी भी दोबारा उस सेंस एंजॉयमेंट के लूप में डाल सकता है कि नहीं? सपोज किसी ने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन किया कि मैं ऐसी स्मोकिंग का एग्जांपल देता हूं जस्ट बिकॉज इट्स इजी टू से. सो सपोज किसी ने कमिट किया कि मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा इस नए साल में, और ही इज क्वाइट फिक्स्ड, और 2-3 महीना बीत भी जाता है, वो स्मोकिंग नहीं भी करता है. लेकिन एकदम से जब उसका दोस्त उसको बोलता है, यार तेरे को आना है, तू यार भूल गया, तो ये जैसे ही उसको वो टेस्ट याद आता है, उसको याद, यार तेरे को याद नहीं मैंने क्या किया था तेरे बर्थडे पे, एंड सो ऑन, एंड देन वो जो उसका टेस्ट था वो एक्टिव हो जाता है वापस. इसीलिए हम देखते हैं लोग कमिट करके फिर फेल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो पुराना टेस्ट जो है वो वापस आ जाता है. हमारा लेजीनेस या हमारा जो भी टेस्ट है, दैट कम्स बैक. तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, द सॉल्यूशन इज टू डेवलप. इस सॉल्यूशन इज नॉट टू स्टॉप द सेंसेस. The solution is to give higher taste to the senses, and that higher taste is available only when we connect the senses to service of Krishna. आगे भगवान बता रहे, the senses are so strong and impetus. Oh Arjuna, the senses are so strong and impetuous, oh Arjuna, that they forcibly carrying away the mind even of man of discrimination who is endeavoring to control them. तो बता रहे सेंसेस इतना स्ट्रांग है, वही बात बता रहे कि जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है, उसके माइंड को क्या कर देंगे वो, they will sway away. And इसलिए अर्जुन भी ये क्वेश्चन कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण. माइंड इज सो स्ट्रांग, द सेंसेस आर सो स्ट्रांग, द कंडीशन लिविंग एंटिटी ही बिकम्स विक्टिम. और जो उसने सारा रेजोल्यूशन किया था, सारा प्रोग्रेस किया था, वो सारा खत्म हो जाता है. We go back to square one. So, and the next sloka 61, it says, one who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me,
is the man of steady intelligence. तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं कि सेंसेस को रिस्ट्रेन करना है, बट यूज करना है कहाँ पर? भगवान के सेवा में। जब भगवान की कॉन्शियसनेस आती है, जब हमारे पास हायर टेस्ट होता है, तो सेंसेस का जो लोअर डिमांड्स है, दैट विल नॉट डिस्टर्ब अस एनीमोर। अब ये कुछ सेलिब्रेटेड श्लोकास हैं, आप लोग जाइएगा मत, इवन आपने अटेंडेंस लगा भी दिया, प्लीज स्टे हियर फॉर एटलीस्ट 5-7 मिनट्स, क्योंकि ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अभी श्लोका यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पर रूट कॉज एनालिसिस यहाँ पे बोला जाता है, रूट कॉज एनालिसिस। तो ये श्लोक जो है, let me display them and you can recite. Can you please, I humbly request you to stay for 10 minutes more, because we want to cover this chapter 2 today. Just 2 more important principles we will discuss and then we will stop. 1 minute, I'm unable to. Okay. So we are now talking of text 62. आप प्लीज निकाल लीजिए श्लोक संख्या 62, 62. It's a very important text and this is a text to learn also. 61 में हमने डिस्कस कर लिया महाराज अम्बरीश का, और अब आई होप मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है। कैन समवन कंफर्म? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। While contemplating on the objects of senses, a person develops attachment from them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. This is a very, very important connection which the Lord is telling. कई लोग ये पूछते हैं कि ये गुस्सा जो है मेरा कंट्रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये शुरू कहाँ पे होता है, where it all begins. So the Lord is explaining here while contemplating the object of senses. और इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्टली एक पिक्चर दिखाता हूँ। 1 minute. I directly go to. So here it says by contemplating the object of senses. इसका मतलब क्या है contemplating sense? कि हम मन में किसी चीज को enjoy, याद करना शुरू करते हैं। जैसे again I will take same example to avoid any confusion. So for example cigarette smoking. तो मन में, I know इस क्लास में शायद कोई सिगरेट स्मोकिंग वाला कोई नहीं होगा, बट जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, मन में हम लोग उसको कॉन्टेम्पलेट करना शुरू करते हैं। ओह आई विल बी सो हैप्पी अगर मैं उसको सिगरेट को पीऊंगा, आई विल बी सो हैप्पी, और आई विल एंजॉय और समथिंग, है ना। सो दैट काइंड ऑफ ए कॉन्टेम्पलेशन, ये कॉन्टेम्पलेशन जो है यहाँ से शुरुआत होती है। कहाँ से? कॉन्टेम्पलेशन, थिंकिंग से। थिंकिंग के बाद one develops attachment, one feels like doing it, one feels like उसको attachment feel होने लगता है उस एक्टिविटी। सबसे पहले बस एक थॉट होता है, और यहाँ पर एक बहुत सीक्रेट गोल्डन फॉर्मूला हमारे आचार्य लोगों ने बताया है कि अगर आपको कोई चीज ऐसे सताती है, जैसे कि सपोज सिगरेट स्मोकिंग एज एन एग्जांपल, और समथिंग, हम सबको पता है कि हमारा वीकनेस क्या है, राइट? वी ऑल हैव सम वीकनेस। उसको अगर हमने थिंकिंग स्टेज पे रोक दिया, थिंकिंग स्टेज पे रोक दिया, तो आप बहुत चांसेस हैं कि आप उसके लूप से बच जाओगे। नहीं तो क्या, कैसा लूप चलेगा? ये सारा लूप भगवत गीता में समझाया है। पहले कॉन्टेम्पलेशन होता है, फिर वन फील्स लाइक डूइंग इट, फीलिंग आता है हमारे अंदर, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, एंड देन इट इज विलिंग एंड डूइंग स्टेज, दैट इज व्हिच लीड्स टू लस्ट। अब उसको एंजॉय करने का पूरा फायर आ जाता है हमारे अंदर। और ये लस्ट कैसा है? ये लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता है। ये लस्ट का मतलब क्या है? लस्ट ऑफ कोर्स एक तो जो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो वन एंजॉयज
sex life or some kind of, that is lust, but that's not, that's लोग सोचते हैं lust का मतलब केवल वो है, lust का केवल वो मतलब नहीं, lust का मतलब है anything which we are want to enjoy away from Krishna, apart from Krishna, that is lust. तो लस्ट में क्या होता है, क्योंकि भगवान के संबंध में वो नहीं है, इसलिए हमें पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अब यहाँ पर भी दो तरीके से हमारे आचार्य लोग समझाते हैं कि लस्ट अगर फुलफिल हो गया, अगर हमें मतलब जो चीज हमें चाहते हैं, कई बार तो हमारा थिंकिंग फीलिंग विलिंग पे ही रह जाता है कहानी, और अगर हमारा विलिंग पे ही कहानी रह जाता है तो हमें गुस्सा आता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अनसेटिस्फाइड लस्ट रिजल्ट्स इन एंगर। जैसे जस्ट एक ग्रॉस मटेरियल वर्ड से एग्जांपल कि एक लड़का लड़की को चाहता है और वो उसको बहुत ज्यादा, बहुत उसके बारे में सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, लेकिन वो लड़की उसको रिफ्यूज कर देते कि नो आई डोंट, आई हेट यू, समथिंग लाइक फ्रॉम हिंदी मूवी। तो वो जो अनसेटिस्फाइड लस्ट है वो क्या होता है, उससे एंगर आता है। उससे क्या होता है, यू बिकम, बिकॉज द लस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड एंड यू आर फीलिंग लाइक एंजॉयिंग दैट, but that's not satisfied. उससे क्या होता है, then it creates delusion, delusion से फिर क्या होता है, bewilderment of memory, bewilderment से loss of intelligence, and one falls down into gross material existence. So it all begins here. It begins by contemplating the object of senses. One develop attachment, it needs to lust, lust, the unfulfilled lust leads to anger. लेकिन अगर कोई पूछेगा कि फुलफिल लस्ट, वैसे तो फुलफिल लस्ट कुछ होता नहीं, लेकिन अगर लस्ट कुछ हद तक भी फुलफिल हो जाए, जो लस्ट है अगर वो कुछ हद तक हमारा फुलफिल हो जाए तो क्या होता है, तो फिर यहाँ एंगर की बजाय यहाँ पे ग्रीड डेवलप हो जाता है। तो लस्ट जो है वो खतरनाक है, यानी कि अगर फुलफिल हो गई, यानी कि अगर हम जो चाहते थे, मनोकामना, हमारी जो इच्छाएं थी सेंस एंजॉयमेंट की, वो पूरी हो गई, तो देन we will develop greed, we will want to do more, we want more. और अगर वो पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, it will result into anger, delusion, bewilderment of memory, loss of intelligence, and this is then the cycle of material existence. So therefore the great sages, they have suggested कि we should stop contemplating the object of senses. अब आप बोलोगे कि सेंसेस के ऑब्जेक्ट को कॉन्टेम्पलेट करना कैसे छोड़े, ये तो पूरी जगह हमारे जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। वो क्या करती है, आपको बहुत बार बार कॉन्टेम्पलेट कराती है, वो दिखाने आके दिखाएगा ये मोबाइल लोगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, ये टूथपेस्ट लोगे तो वो आपका जो गर्लफ्रेंड है वो स्माइल करेगी क्योंकि आपके दांत उसको अच्छे लगेंगे, लाइक दैट दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ डेवलप सम काइंड ऑफ ए टेस्ट। बार बार दिखाएंगे उसको, बार बार दिखाएंगे उसको, बार बार दिखाएंगे, और हमारा मन जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मन के अंदर डिजायर डेवलप हो जाएगा, मन उस पर कॉन्टेम्पलेट करना शुरू कर देगा, हाँ मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं भी ऐसा एंजॉय करूंगा, मैं भी ऐसा। और जैसे ही हमारे मन में ये लूप शुरू हुआ, फिर हम विलिंग, आप देखोगे कई बार आपको ऐसा फील होगा लाइफ में, आई डोंट नो, एटलीस्ट आई एक्सपीरियंस इट अ लॉट, कि आप किसी चीज में ज्यादा उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे ऐसे एंजॉयमेंट करना है या ये करना है, लेकिन और आप बहुत चाहो तो एकदम उससे दूर रह सकते हो, लेकिन एक बार आपने उस पर सोचना शुरू कर दिया, सोचना शुरू करा, सोचना और सोचा और सोचा और सोचा, वो विलिंग पे आ गया, आपका विल हो गया, इच्छा हो गया, उससे एक्शन में कन्वर्ट हो गया, और आपको पता भी नहीं चलेगा, जब एक्शन सारा पूरा हो गया तब पता चलेगा ओ माय गॉड, हमें पता ही नहीं चलेगा कब कॉन्टेम्पलेशन से शुरू होके, और इसकी वजह से हम बार बार फॉल डाउन हो जाते हैं material situation. So the best formula is to stop contemplation on the objects of senses. जो जैसे ही हमारे मन में किसी सेंस ऑब्जेक्ट को एंजॉय करने का बात आए, we should change the topic of the mind. माइंड के टॉपिक को चेंज कर दो. How it is possible to change? मटेरियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड पूरा जो है, इट इज कॉल्ड मैथुनागार, इट इज द प्लेस ऑफ लस्ट। लेकिन जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है,
जैसे कि कॉन्टेम्पलेशन तो कुछ करेगा ही, हमारा माइंड और सेंसेस कभी खाली नहीं रह सकता, हमारा माइंड और सेंसेस हमेशा एक्टिव रहता है, इसलिए उसको कुछ तो चाहिए। जैसे एक बच्चा है ना, उसको कुछ तो चाहिए। आजकल तो पेरेंट्स बच्चे को मोबाइल फोन दे देते हैं कि ले इसी से खेलता रहे। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ऑफिस जाना है, कुछ उसको बिजी करने के लिए चाहिए। इसलिए माइंड को और सेंसेस को हमें बिजी कर देना चाहिए। हाँ, माइंड और सेंसेस को हमें पूरी तरह बिजी कर देना चाहिए। किसमें बिजी कर देना चाहिए? कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट कृष्णा, कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो कॉन्टेम्पलेशन कैसे होगा? जब आप भगवान के बारे में सुनेंगे। जब आप भगवान के बारे में सुनेंगे तो पहले श्रवण होगा, तो आप भगवान को याद कर पाओगे। फर्स्ट इज श्रवण एंड देन कीर्तन एंड देन स्मरण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। तो जब माइंड को हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज कर देंगे, जैसे महाराज अम्बरीश ने करके रखा था, भगवान के चरणों का स्मरण करना, भगवान का तुलसी पत्ते, अगर हमारा लाइफ ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा लाइफ जो है मेटेरियल एंजॉयमेंट को कॉन्टेम्पलेट करेगा, और ये लूप जो है रोज शुरू होगा, एक लूप, कभी ये लूप कभी वो लूप, और हमेशा हम मेटेरियल एंटेंगलमेंट में फंसे रहेंगे। और लाइफ के लास्ट में, और हमारा सारा एक्टिविटीज भी ऐसा ही होगा, और फिर लाइफ के लास्ट में हम इस जीवन को सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। वी विल रिमेन इन द मेटेरियल वर्ल्ड in different life forms. लेकिन those who are intelligent, they will take to Krishna consciousness. वो अपने माइंड, हमारे जो डिवोटीज हैं इस्कॉन में खासतौर से, they are so busy, super busy, उनको एक कॉल लेने का टाइम नहीं मिलता है। Why? They are always thinking, engaged in service of Krishna. There are so many projects, so many services, so many things to do. हमेशा डिवोटी बिजी रहते हैं कृष्णा, इसलिए हमें अपने माइंड को बिजी करना है। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही बात है। अगर हमारा माइंड भगवान के टॉपिक्स में बिजी नहीं होगा तो हमारा माइंड मटेरियल वर्ल्ड की एंजॉयमेंट में बिजी होगा, which will always deteriorate our consciousness and bring it to a very low level of consciousness, and we will be entrapped in the cycle of birth and death. So a devotee is understand this, devotee understand, and this is not, ये जो भगवत गीता का फिलोसफी है ये कोई इम्प्रैक्टिकल फिलोसफी नहीं है, इट इज हाईली प्रैक्टिकल। आप देखोगे ये सारी चीजें हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई की बात नहीं चल रही, कौन सा तीर चलाना है, अर्जुन अब ये तीर चलाओ, अब दुर्योधन ने ये चलाया, अब तुम ये चलाओ। ये अपनी अपनी लाइफ की स्ट्रगल है। भगवत गीता जो हम यहाँ स्टडी कर, ये हम अपनी माइंड और सेंसेस से हमेशा फाइट कर सकते हैं, करते रहते हैं, है ना। किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम खुद सोचें तो हमारे माइंड का स्ट्रगल चल रहा है ना कहीं, हमारा सेंस एंजॉयमेंट का स्ट्रगल चल रहा है ना कहीं। सो द सॉल्यूशन इज, अगेन द सॉल्यूशन इज हायर एंगेजमेंट। इसलिए हम सबको अपनी सारी स्किल्स को, अपनी योग्यताओं को, अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा भगवान के सर्विस में लगाना चाहिए। अभी हम भगवान के सर्विस के लिए लगाते हैं इतना सा, अगर लगाते भी हैं तो 2 मिनट। आप देखोगे नॉर्मल जो एक व्यक्ति है इस मेटेरियल वर्ल्ड में, अगर वो आस्तिक भी है, वैसे तो बहुत सारे लोग आजकल नास्तिक भी हो गए, लेकिन अगर वो आस्तिक भी है तो सुबह उठता है, नहाता है, भगवान को 2 सेकंड के लिए अगरबत्ती दिखाता है, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, जय जगदीश हरे, फिनिश। और फिर सारा दिन अपने लिए काम शुरू हो जाता है। उसके लिए लाइफ में जो टाइम है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए बहुत थोड़ा है, which is not sufficient. So therefore a devotee should engage. कई लोग बोलते हैं हमें रात को सपने आते हैं खराब, क्योंकि हमारा माइंड सेंसेस हमेशा वही कॉन्टेम्पलेट करता रहता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड के अंदर भी यही मेमोरीज बैठ जाता है। इसलिए डिवोटीज क्या करते हैं, रात को सोने से पहले भगवान के कुछ लीलाओं को पढ़ते हैं। they read about the pastimes of the Lord. जब उस pastimes को पढ़ते हैं so their mind become full of Krishna, और फिर उनको रात को सपने भी किसके आएंगे? They will dream of Krishna, they will dream of the Lord, that they will not dream of अगर आपने कोई हॉरर मूवी देखा है ना, तो कई बार रात को लोग डरते हैं, क्योंकि वही चीज रात को याद आएगा, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। और अगर आप कृष्ण की मूवी समझोगे, जैसे भगवत गीता समझोगे, तो रात को वही याद आएगा, ध्यायतो विषयाम पुंसा, कैसे हमें बचना है, संगस्तेषु उपजायते संजाय कामा क्रोधो उपजायते। तो ये हम समझते रहेंगे। सो वी हैव टू एब्सॉर्ब
our mind, our senses in service of the Lord. यही भगवान बार बार यहाँ पे बता रहे हैं। ये हमने उस पिक्चर के हेल्प से श्लोका 62, 63 भी कर लिया, 64। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट एंड अवर्जन can be able to control his senses through regulative principles of freedom। तो ये 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में जो डिवोटीज हैं वो 4 नियमों का पालन करते हैं। वो 4 नियम क्या क्या हैं? 4 नियम्स। दीज आर कॉल्ड रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हमारी लाइफ को रेगुलेट करने में ये मदद करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। और इनको बोला गया प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम इसलिए क्योंकि ये हमारे मटेरियल वर्ल्ड की जो बॉन्डेज है उससे हमें दूर करने में मदद करते हैं। व्हाट आर दीज 4 प्रिंसिपल्स? पहला, नो मीट फिश एग्स। डिवोटीज डोंट टेक नॉन वेज और फिश और एग, समथिंग लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज दिस डिटेरियोरेट्स आवर कॉन्शियसनेस। ये हमारी कॉन्शियसनेस को डिटेरियोरेट करता है। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मर्सी। जो धर्म है उसके 4 पांव हैं। धर्म के 4 पांव हैं। फर्स्ट इज ट्रूथफुलनेस, सेकंड इज मर्सी, थर्ड इज शौचम क्लीनलीनेस एंड फोर्थ इज तपस्या ऑस्टेरिटी। सो ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी एंड मर्सी। अगर कोई भी चीज इनको इस धर्म की 4 लेग्स को ब्रेक करता है, that is not good for our Krishna consciousness. So eating meat, fish, eggs, they are against the principle of mercy or daya. So therefore one should not eat meat, fish or eggs. At least one should try not to eat, and one should pray to the Lord, and then it is so easy to give them up. Second, the principle number 1, no meat, fish, eggs. Second, no gambling. जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, they don't engage in gambling. कोई भी कृष्ण डिवोटी, they don't engage in gambling, because gambling, why taking alcohol is not accepted? What is wrong in it? Because alcohol puts us in illusion, it puts us in lower consciousness. हमारा जो गोल है वो तीनों गुणों से ऊपर उठना है। जैसे भगवान आज बार बार बोल रहे हैं कि ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। आई एम सॉरी, प्लीज, we are taking little time, but this is so important topic. Just give little more time, we will close shortly. I also have to go. भगवान बार बार ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस की बात करें। ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस मतलब तीनों गुणों से परे, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये जो अल्कोहल ड्रिंकिंग है या जो मीट ईटिंग है, ये हमें लोअर मोड्स में डालता है, यानी कि तमोगुण और रजोगुण में डालता है। जबकि हमारा गोल है इवन सतोगुण से भी ऊपर उठना, सतोगुण को भी हमें ट्रांसेंड करना, उसको बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस या शुद्ध सत्व। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो वी वांट टू ट्रांसेंड ऑल द 3 मोड्स एंड वी वांट टू बी सिचुएटेड इन अ प्योर मोड। और ये जो अल्कोहल, मीट ईटिंग, स्मोकिंग, दे पुट अस इन लोअर कॉन्शियसनेस, दे पुट अस इन लोअर कॉन्शियसनेस। इसलिए वी वांट टू अवॉइड। सो पहला, नो मीट, फिश, एग्स। दूसरा, नो गैम्बलिंग, एंड थर्ड इज नो इंटॉक्सिकेशन, जैसे आपने पूछा। तो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूड्स सिगरेट स्मोकिंग और लिकर, these things, these lower our fun. So but you should not think कि अगर आप आज इनमें से कोई चीजें कर रहे हो, so I am not fit and so better I don't read Bhagavad Gita now. It's not like that. In this material world, all of us, yeah, we are coming. Yeah, so Mataji is reminding, intoxication also includes tea and coffee. Someone say, what? Tea? Tea is an intoxicant? Yeah, tea is also intoxicant. This may be a little heavy for you, for some of you. Why tea is intoxicant? Because tea is made, one of the ingredients of tea is caffeine. And caffeine by nature is a intoxicant. So, but devotees take other teas. They take like herbal teas and they take many other nice teas, but they don't take the caffeine tea.
So caffeine tea and caffeine coffee is a problem because it has intoxicants and it makes you dependent. आपने देखा है ना, कई लोग बोलते हैं मेरे जब तक चाय ना पी लूं मेरा सिर दर्द मतलब मेरा सिर ही दर्द हो जाता है. They become dependent upon them, just like depending upon drugs. So devotees take better tea. They take tea, but they take different tea. Which tea? They take herbal tea. Some nice herbs. They make it much better than that, and they take it. So only caffeine tea is not to be taken. And then the last one is no illicit relationships. No illicit sexual relationship. This is the fourth principle. What does that mean? That means sex life has a purpose. The purpose is to produce children. Purpose is to produce children. So it should be used for that purpose. Between a married life, in a married life, combining to produce children is absolutely all right. Krishna says, I am the sex life which is not against the religious principle. So what is that? Not against the religious principle means it should not be for other purpose than to produce children. So that is the purpose of sex. So for a married couple to have children is absolutely, please have children, but enjoyment of sex life not for enjoyment, not for recreation. It is for procreation. That is the fourth principle. So fourth principle is no illicit sex. So these are the four principles. Someone may look, they are so strict, so many restrictions. You never told me. Otherwise, we will not come to this Gita class. But these are not the restrictions to bind us. Normally, if there is some restriction which is imposed upon us, we think that it is a binding. But if you read what Lord is saying, Lord says that these are the regulative principles of freedom. It is just like wearing a helmet. Do you think it's a restriction? Actually, it's not restriction. It's actually making you more free. Following the red light is making you more free. आपको कोई पुलिस वाला नहीं रोक सकता, लेकिन आपने जब रेड लाइट को क्रॉस किया तो आपके मन में धक धक लगा रहेगा कि कोई पुलिस वाला पकड़ तो नहीं लेगा. तो जब हम रूल को फॉलो करते हैं, we get the protection, we get the freedom. So therefore these principles, although it may look little tough for us today, हमें थोड़ा टफ लग सकता है, but the Krishna consciousness is so tasteful, it is so higher in consciousness कि ये इन चीजों को छोड़ना ऐसे हो जाता है, ऐसे within one, because we chant the holy name, we take prasadam, giving up alcohol, giving up, अगर किसी को alcohol वगैरह किसी चीज को छोड़ने में दिक्कत हो रहा है, he should just try to chant holy name of Krishna. He should become a devotee of Krishna, and giving up these things will become easy. But still, if still we are struggling, someone may be struggling with these things, that does not mean that he should give up Krishna consciousness, because that is the only hope. It is the only hope for us to purify. So we may be struggling today to follow this, but with strong determination, if one follows, try to follow, then one day he will overcome these problems. But जब तक ये चारों चीजें हम नहीं भी कर पा रहे, suppose we are not following these things, still we should hear Bhagavad Gita, we should chant the holy names, we should pray to the Lord, and one day we will become pure. लेकिन जैसे मैंने बताया अभी, the taste for enjoyment, it comes all of a sudden, क्योंकि वो टेस्ट पूरी तरह से नहीं गया है. तो हो सकता है आप इन चीजों को छोड़ दें, लेकिन इसका टेस्ट बना रहेगा, और वो टेस्ट को जैसे मौका मिलेगा, वो टेस्ट वहां पे घुस जाएगा, और वो क्या करेगा, हमें फिर से लोअर मोड्स में डाल देगा. इसलिए बेस्ट है ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करें जहां पे हमें वो लोअर टेस्ट, वैसा टेस्ट, क्योंकि अभी हमें ये भूलना नहीं है कि हम अभी पूरी तरह से प्योर नहीं हुए. हमारा जो टेस्ट है वो है, हमने भी उसको रोक के रखा है अपने सेंस एंजॉयमेंट को. थोड़ा सा हैवी टॉपिक है ना, बट आप जब इसको भगवत गीता में पढ़ोगे अभी, तो आप सबको अच्छे से रिलेट कर पाओगे. सो
तो the taste still remains, और उस taste हमें वापस उस pool में डाल देता है. So therefore we have to pray to the Lord, we have to be busy in service of Krishna, and then higher consciousness will prevail, and then the lower consciousness will not disturb us, and then we will become indifferent. We will not be bothered by attachment or aversion, and threefold miseries of material existence will not disturb us, and the consciousness will be a satisfied consciousness. One who is not connected with the Supreme can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. How can there be happiness and happiness without peace? तो that जो भगवान से connected नहीं है, he can never be enjoying life. He can never be peaceful and happy. As a strong wind sweeps away the boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away. वही बता रहे हैं बार बार कि हमारी सेंसेस बहुत पावरफुल है. जैसे एक नाव स्टेडी पानी में तैर रही है, लेकिन एक हवा का झोंका आएगा उस नाव को हिला देता है. इसी तरह हमारी एक भी सेंसेस हमें क्या कर सकता है, हमारी स्टेडी इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब कर सकता है और हमें वापस मटेरियल पूल में डाल सकता है. So therefore, O mighty arm, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. What is so like that? I think we have more or less covered this chapter. Only one more analogy I am taking before we close today. It says that is in Shloka 70, a very interesting Shloka. It says, a person who is not disturbed by the incessant flow of desires and that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled, but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. This is very wonderful examples the Lord gives. Lord is giving the example of an ocean. तो बता रहे हैं कि जैसे समुद्र में कभी नदियां बहुत तेजी से प्रवाह से आती हैं और कभी कभी नदियां सूख जाती हैं. कभी कभी मौसम ऐसा, गर्मी के मौसम में नदियां सूख जाती हैं, कभी तो भर भर के आती हैं बरसाती मौसम में, कभी बिल्कुल सूख जाते हैं. लेकिन जो समुद्र है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है उससे. समुद्र वैसे ही लहराता रहता है. ऐसा नहीं कि समुद्र, लेकिन इसको कंपेयर किससे किया, एक तालाब से. एक जो तालाब है, जब बहुत तेज जब रेनी सीजन होता है तो तालाब में बाढ़ आ जाती है, और जब गर्मी थोड़ी सी होती है तो तालाब में एकदम सूखा पड़ जाता है. तो जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, he is like an ocean. He's trying to become like an ocean. He does not become disturbed by so many, because he becomes deeply fixed in his attachment and service to Krishna. जो एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी है, अगर वो कैसे अपने आप को डीप करता है, he becomes deep like an ocean, and he does not becomes disturbed by inflow, by getting something or not getting something, because he becomes more fixed in his relation to Krishna. आगे जाके हम एक श्लोक और पढ़ेंगे, आज नहीं, आज मैं जस्ट उसका आपको एक वो हिंट दे रहा हूं. तो श्लोक में भगवान बताते हैं कि these principles are to judge ourselves. ये प्रिंसिपल जो है ये हमें अपने आप को जज करना है. we should not judge others. Especially भगवान बताते हैं कि अगर कोई सेंट, अगर कोई डिवोटी who is a very nicely fixed up devotee in Krishna consciousness, आप लोग सुन रहे हो, someone who is very fixed up in Krishna consciousness, sometime you may see that there is some kind of a abominable mistake by him. हो सकता है कि वो आदमी कोई बहुत बड़ा गलती कर दे. जैसे हो सकता है बहुत फिक्स्ड अप डिवोटी हो, लेकिन हो सकता है कि जो पुराना सेंसेस का जो स्मेल है, सेंसेस का जो टेस्ट बना हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है कि वो कभी एक्सीडेंटली उससे मिस्टेक हो जाए. जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा डिवोटी हो, लेकिन एक्सीडेंटली देखा कि उसने ड्रिंक कर लिया. क्यों ड्रिंक कर लिया? क्योंकि जो कुछ उसको पुरानी चीज याद आ गई, और एकदम तब भी हमें उसको कैसे मानना चाहिए. भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं इसको, कह रहे हैं कि वी शुड ट्रीट हिम एज ए सेंट, एज नॉट एज ए material sense enjoyer. So that means Krishna understands our position and he protects us, he helps us
moving ahead. So in this journey, we are not alone. We are protected by the Lord, we are protected by Dharma, and we are protected by the Vaishnavas, the devotees of the Lord. So in the Bhagavatam these days we are reading the Bhishma Stuti. उसमें बता रहे कि Vipra Dharma Achyuta Ashraya. Vipra means the Brahmanas or and the Vaishnavas. Dharma, the religious principles. Achyuta, Achyuta is Krishna, and Ashraya means shelter. So if we are in the shelter of Brahmanas, that is and higher than the Brahmanas are the Vaishnavas, the religious principles we follow, and we are in shelter of Krishna, Achyuta, then we are in the right shelter, and everything auspicious will happen in our life. So like that, it's a very important section. I'm not even qualified to speak on this section. So thank you so much for being here and participating either by being present or by being just hiding behind your name. But I sincerely thank you, and we hope that with today's everyone's help, we completed chapter 2 of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita में कई सारे कोर्स होते हैं, कई लोग एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. For me, it is an impossible task. I need some time because it's a point where we need to discuss, where we need to contemplate, we need to practice Krishna consciousness also, like that. So thank you very much. Have a great Krishna conscious sleep. I hope you will be remembering Krishna this night, and you will dream of Krishna. You will dream of Krishna. How many of you want to dream of Krishna? No one wants to dream. You want to dream Krishna this night? कि रात को भगवान आपके सपने में आए. You want that? Yeah, some of you want. Let's see. Next class you can tell कि आपको. And did you see Krishna in the dream? And if you see Krishna in the dream, what did he say? What he said? What was he doing? You can share with us, and we will be happy to hear. Okay, so thank you very much. There are some hands which are up. Let me ask them if they want to give some information. Siddhant Prabhu has a hand raised. Prabhu, you want to say something? Oh, now he's gone. Now I don't see him. Sri Nalaniji, you have your hand raised. You want to say something? Prabhuji, Pranam Prabhuji. Pranam, Prabhu. Prabhuji, I want to know immediate after this course, is there any higher course regarding Bhagavad Gita? Yeah, so this is just preliminary course, and we can have more course on Bhagavad Gita. Then in ISKCON there are many nice courses like Bhakti Shastri, there are courses like Bhakti Vaibhav, there are courses like Bhakti Siddhanta. There is no end. Whole life you can do courses. For only Bhagavad Gita only there are many courses. Bhakti Vaibhav. Bhakti Shastri includes Bhagavad Gita, so we will be reading Bhagavad Gita in this course, Bhakti Shastri, and there you will understand it even more deeply. So this is somewhere we have to begin somewhere. So this is like that. So that time also Bhashya will be there. Description of Bhashya. I'm sorry, what you said? Can you repeat? That time also description of a Bhashya will be there. Shankara Bhashya. So what Bhashya Srila Prabhupada says, this is Govinda Bhashya, which is explained. Srila Prabhupada dedicates this book in the beginning. If you see, in the beginning of this book, Srila Prabhupada says, let me read it for you. Yeah, so the Lord says that
book is dedicated to Srila Baladev Vidyabhushan, who presented so nicely the Govinda Bhasya commentary on Vedanta philosophy. So here in the Vaishnava cult, we are reading the Govind, the Bhasya that we refer is the Govinda Bhasya. I have not heard of any other Bhasya that we study on here. But there's a very nice pastime which I can tell next time. It will take some time. What is the meaning of this Govinda Bhasya? If you can remind me, then I can tell you in the next class. Govinda Bhasya. Okay, Prabhuji. Thank you very much. Nikita, thank you, Hare Krishna. Nikita Mataji, you want to say something quickly? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने प्रीवियस क्लास में मेंटर के लिए बात किया था, तो इवन आई वांट वन मेंटर. You want a mentor? Yeah, I know many of you will. Amarjit Prabhu will help us. Amarjit Prabhu is here. He is planning to. Amarjit Prabhu, so devotees want to have mentors. So can we discuss this in this week and try to plan something for the devotees? Yeah. Yes, Prabhuji. Okay. So thank you for reminding us, Mataji. Okay. Anjali Mataji has some question quickly. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, आप राजा अम्बरीश का मतलब बता रहे थे उनके जीवन परिचय, तो उसमें लिखा है नीचे, इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए. तो प्रभु जी, मत पर का क्या तात्पर्य मतलब है? So it is a very dear devotee of the Lord. Someone that Lord says that he is my person. His life is fully to serve Krishna. A very dear devotee of Krishna. Bhagavad devotee of Krishna. Okay. So you want to also become Matpara devotee? You can become. Yes. Thank you. Yes, Anubhav Prabhu wants to say something. Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, दो क्वेश्चंस हैं. एक तो जो आपने चार्ट शोकेस किया था जिसमें हम कॉन्टेम्पलेशन से स्टार्ट करते हैं, देन उसमें नीचे आकर के मतलब जब हम जो भी हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, इफ दैट डिजायर डज नॉट फुलफिल, देन इट कन्वर्ट इनटू एंगर. सो प्रभु जी, many a times if I talk about spiritualism also, I have a desire to serve Krishna, but because of some material restrictions I can't do that, or because of any situational thing मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाह रहा हूँ. To in spiritualism also, then that also converts into anger. And I don't know कि क्या वहां से इस प्रोसेस में भी हम नीचे गिरते हैं जैसा कि वो चार्ट हमें बता रहा है, because that is also a desire and that desire is also not being fulfilled because of any reason. It could be any reason. Yeah, exactly. So first of all, let me tell you one thing. In Krishna consciousness, it will always be like this, that our desires, we will be desiring to do more and we will be able to do less. That is just opposite of lust. That is just opposite of lust. That is devotee's great eagerness to serve Krishna. That is called lolyum. Lolyum means greed. Even devotees are having a lot of greed. But that greed is not for their own sense enjoyment. That greed is to serve Krishna. So even if अगर एक डिवोटी बहुत सारा सर्विस करते हैं, उसको लगता है यार ये मैं कर ही नहीं पा रहा, यार ये हो ही नहीं पा रहा, ये कुछ करना चाहिए मुझे, I want to do more. That is not polluting, that is purifying. So that is a good symptom. So yes, one feels some dissatisfaction and anger. Why I am not able to do that? But that is completely different from this, where a person is having anger of not fulfilling his lust. Here we are not. Here the dissatisfaction is because we are not able to serve Krishna enough. We want to serve him more. So this is a good news. If you are feeling like this, we want to serve Krishna more. Yeah. But ultimately, Prabhu, it will always remain like this, because even if you serve him much more, then you will feel that I should serve him much more. And then when you will achieve much more, you will think I am not doing anything. You will say I need to serve him much more. तो जितना आप ज्यादा सर्व करते जाओगे भगवान को,
उतना ज्यादा और डिजायर आता जाएगा, आई वांट टू सर्व हिम मोर. सो यू विल ऑलवेज हैव दैट डिससैटिस्फैक्शन, व्हिच इज गुड. कभी एक भक्त को ये फील नहीं होता अब मैं बहुत अच्छा भक्ति कर लिया, बहुत है. नो, डिवोटी ऑलवेज फील सम discrepancy, some lacking, something lacking from his side. Okay, Prabhu. So have that desire, no worries. Yes, Prabhuji. Okay. Yes, Ashutosh Prabhu last. After that, we will stop quickly. Yes, Ashutosh Pandey Prabhu, you want to say something? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Dandavat pranams. प्रभु जी कैसे हो आप? I need your blessings. आपने प्रसाद पाया प्रभु? कुछ आपने कुछ प्रसाद पाया? प्रसाद पाया? अभी तो मैं आप ही लोगों के साथ हूँ 7 बजे से. Now I will eat. How about you? कैसे? हाँ? हमने भी नहीं पाया. आपने नहीं हुआ. आप जो वीडियो ऑन रखते हैं बेचारे पा नहीं पाते, और जो वीडियो बंद करते हैं चुपचाप पा लेते हैं साथ साथ. So that is the secret. Okay. प्रभु जी, हमारा जैसे कि हम 3 दिन भी रहे तो हम वैसे तो बहुत ही बदतमीज किस्म के थे, पर हम एकदम से सुधर गए थे. और फिर हम जैसे ही वापस आए ना तो हम बैक टू ट्रैक आ गए एकदम. मतलब ऐसे समझिए जैसे कि पीछे किसी ने खींच लिया हो. और हम चाहते तो बहुत कुछ है पर होता कुछ नहीं है, बस हम बड़बड़ाते रहते हैं और बोलते रहते हैं फालतू का. तो आपको अगर फील हो रहा था कि डिवोटी, इनका क्वेश्चन ये है कि डिवोटी के संग में आए 2-3 दिन में इनको बहुत अच्छा लगा और अभी ये फिर से जब दूर चले गए तो इनको फिर से बैक टू स्क्वायर वन लग रहा है. तो आपको किसने कहा है डिवोटी से दूर रहिए? यू स्टे विद डिवोटीज, यू कम एंड कनेक्ट विद डिवोटीज, यू ट्राई टू बी विद डिवोटीज, इफ नॉट पॉसिबल ऑनलाइन ऑफलाइन, एटलीस्ट ऑनलाइन. And if it is possible offline, then there is nothing like that. So don't give up the association. अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे. Krishna conscious, we need each other. Even I need you. I need your association. अगर आप लोग यहाँ पे नहीं होंगे और हम ये भगवत गीता क्लास ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, हो सकता है मेरा माइंड और ही कुछ सोचता रहेगा कि मैं कौन सा कार लूं या कहाँ से थोड़ा और पैकेज वाला जॉब दे लूं. बट जब हम सब मिलकर डिस्कस करते हैं तो we have this opportunity to talk to each other, discuss Krishna Katha, right? So come along, come here. Don't be. प्रभु जी, आज आपका एक कंटेम्पलेटिंग वाला जो टॉपिक था ना, इसने मेरे माइंड के सारे डेस्क को जैसे होता है ना वाटर मार दिया है और मेरा को क्लियर हो गया. मेरा टॉपिक नहीं है, भगवत गीता में भगवान का टॉपिक है, मैं तो सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूँ. यस, ये कॉन्टेम्पलेशन सबसे खतरनाक है. कॉन्टेम्पलेशन जहां रुक गया हम सक्सेसफुल हो जाएंगे. कॉन्टेम्पलेशन जब तक चलता रहेगा हमें फंसाता रहेगा. इसलिए कॉन्टेम्पलेट तो करना है, जैसे अनुभव प्रभु कह रहे हैं, वो कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं कि भगवान का सर्विस हो नहीं पा रहा, तो वैसा कॉन्टेम्पलेशन करना है. कॉन्टेम्पलेशन को नहीं रोकना है, वो रुक नहीं सकता है. कुछ तो माइंड कॉन्टेम्पलेट करेगा ही, लेकिन कौन सा कॉन्टेम्पलेट करना है? जो भक्ति के अनुकूल है उसको कॉन्टेम्पलेट करना है. ओके, सो वी स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम वेरी सॉरी टू डिले यू एवरी टाइम, and I have to learn how to manage time, but it is so important to be with all of you. Hare Krishna. Wish you nice Krishna conscious dreams, and I hope we meet again soon. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. जय हरे कृष्ण. Jai Gaur Premanande. Who is the host? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम आप सबको. माता जी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.